Respected AGM, SDGM, the guest speaker, all PHODs, HODs, officers, and other officials of South Central Railway, a very good morning. We are truly honored to have all of you here. It's my pleasure to invite AGM sir, SDGM sir, and the guest speaker onto the dais. Sir, please. Deputy CVOs to please escort. I would request SDGM sir to present a sapling to AGM sir, so as to welcome sir. I request SDGM sir to present a sapling to Shri Anish Prasad, IPS, ED Vigilance Police, Railway Board. Welcome, sir. I request Deputy CVO Engineering, Shri Mutyal Naidu, to present sapling to SDGM, sir. Welcome, sirs. Vigilance is satarkata and savdhani, meaning high state of alertness and watchfulness. As an initiative towards preventive vigilance, 45 lecture series has been launched in January 2025 with the gracefulness of our GM and AGM. As you all know, the first lecture was on government e-marketplace, which saw a very good response. This time we got it better. The topic is just not limited to our professional life, but also to our personal, social, and financial aspects of our lives. Also, we got a speaker who is a wizard on the subject. So I'm sure all of you will find it engaging and useful. I now would like to invite SDGM and CVO South Central Railway, Shri J. Vinayan, to deliver the welcome address. Sir. Respected AGM, sir, my dear Shri Anish, dear PHODs, officers, ladies and gentlemen, it is truly an honor and a pleasure to welcome you all into the second edition of the 45 series lecture. It is not that we are not going to have 45 lectures. We will have a series of lectures called 45, that is strengthening us from inside. The first one was on e-marketplace, which was thoroughly enjoyed and appreciated. This is the second one, an equally hot topic, very much required by us in our official work, as well as in the personal work, our personal expenses, personal transactions on the net. Those of us who joined the railways prior to 2000 would be well aware of the slow trickling in of internet and online activity all over the country, and definitely within the railway family. There's an echo here. Now, I'm sure many of you may be remembering those days that internet used to be typically a teenager buying a t-shirt online or a CD, music CD online. Now, what made the change? What made the transition, other than the growth of the internet itself, the broad bandwidth itself? We railways, we had a huge step in that, huge responsibility for transferring it, converting it, transforming it from a little game thing for teenagers into a mass public consumption item, that is the railway ticketing. So I have the great pride in announcing that I was part of the internet ticketing setup in IRCTC. In 2002 to 2007, we set up the internet ticketing, which was originally meant only for Delhi area. As a trial basis, we'll just sell some tickets for Delhi area just to have a proof of concept that we can sell tickets on the net. The idea would be that you'll print a ticket, you'll sell it online, you'll print the ticket and deliver it to your house in 24 hours.
So on day one, we were able to sell about 112 tickets. That was in October 2002. The next day, it jumped to 500 plus, and the next day, it went above 1,000, and we didn't know how to control it. Because people took to internet ticketing like ducks taking to water. And then the numbers went zoomed up. We then thought, okay, we'll just expand it to Bombay and Calcutta, and then the southern cities, and then it was everywhere. And just as we feared, the very next month onwards, cybercrime started, credit card frauds. I don't know if you remember, we used to have only the card with the CVV value. That was the most sacred thing, the CVV value, the 3 digits on the back of the card. And you go to a hotel, you go to a shop, and you give the card for the payment. A lot of people were just copying it down and using that to buy the tickets. But the good thing was the ticket used to be delivered at home. So we could catch the guy when the ticket was being delivered. That was the first few cybercrime cases, credit card fraud cases. And I remember traveling to Ahmedabad and Bombay and Hyderabad and Bangalore and Lucknow to file the first cybercrime cases in Indian Railways and possibly in the country itself. So over the years, Railways was responsible for adding the OTP, which you have today for any credit card transaction. It is a second CVV, second verification value. That OTP is just because of the pressure brought to bear by the Railways. Because the numbers that we were offering, that is 10 lakh tickets a day, 1 million transactions a day, it is just cannot be laughed at. So we forced the credit card banks and credit card owners and the banks and all the financial institutions to widen their bandwidth, to bring in additional security. So that area became somewhat better today. But in the meanwhile, the internet phenomenon not expanded far beyond personal shopping and traveling. It covers practically everything today. Everything today is online. And the fraudsters are one step ahead of us every day for everything. Our only way is keep up to date with them and try to keep on par with them, if not one step further. So how does one stay out of trouble? We have in Railways, we keep saying the best safety device is a careful man. You all heard of it. Even in internet business, even in cyber working, the most careful security device is a careful man. The best security device is a careful man. And how do you become careful? By improving your knowledge and by practice and training, through training and through knowledge. Both this training and knowledge are available here in the form of our Executive Director, P. Sri Anish, a veteran of cybercrime area with a lot of experience in solving cases, analyzing cases, conducting training sessions, seminars, and he's last 3 years or 4 years, he has been continuously a visiting lecturer. He is a knowledge resource for IIT Kanpur, where his lecture is being repeated in every course of students for the cyber hygiene. So I'm extremely proud that he is part of the railway family today, and he's here today with us to hold our hand and take us forward. I also welcome our AGM sir, who is also extremely keen on the subject, and he has also worked as SDGM, and he knows the significance of what we are facing today and how our staff need to be fortified from within to handle this kind of scenario. So I also welcome all the PHODs here who have spared their time. I am hoping that the PHODs and GM sir, etc., who are on the inspection today will also get a chance to see our streaming or the YouTube channel. It's available in all divisions. All the 6 divisions of Southern Railway are logged in. And besides this full house, we have got another 6 locations at least where people are watching. So I hope all of you enjoy and benefit this special presentation. And Jai Hind, thank you. Thank you, sir. We will short 45 lives with this lecture. I would now like to invite our AGM, Shri Neeraj Agarwal, to share his thoughts on this occasion. Sir.
Good morning. Distinguished guest speaker Shri Anish Prasad ji, ED Vigilance Police, Railway Board, Shri Vinian ji, SDGM, senior officials, ladies and gentlemen. I congratulate Team Vigilance and SDGM Saab for choosing very relevant topic for enlightenment and empowerment of working officials. Topic for today's discussion is becoming cyber black belt, simple cyber hygiene steps to outsmart cyber criminals. It is a very important topic for our day-to-day peace and uncalled anxiety. As we hear and read in newspapers that even many learned and educated people are getting exploited and coming into trap of these cyber crimes. So even despite being careful, they are coming into these traps. And we all know and we experience that all our social media accounts, emails, and mobile numbers, all these things in time get circulated. And when we receive some message, as a normal, natural human tendency, we try to open it and we are tempted for it. I will not blame for us. It is a natural curiosity. Since it is a seminar taken forward by Vigilance, so in normal working, our working has also today has become digital and online. I have experienced three kinds of issues in the working. We will get some answers through this today's discussion. One is very lengthy digital information is uploaded in various e-files. Because nowadays uploading is free of cost and it doesn't require much space. And the person who has to take decision, definitely I don't think he can go through all the pages. So there is a need for revising and review the checklists. Second issue, as we are going digital, online, and there are 4, 5, 6 apps or platforms, we share our passwords. Normally these passwords many people keep with their PS or some assistant, but my understanding is the officer cannot absolve his responsibility if something goes from his that account, that platform or email. Third thing is, which I have observed, that nowadays even payment, filling of the tenders, it is all online. Our vendors, contractors, they are not tuned to that level. So many a times they come to our office and they share our Wi-Fi. Okay, till that it is okay. I don't think it should be a big thing. But many a times, even a system is being used, same system is being used by the contractor, same system may be used by our OS or maybe officer. So we are leaving a lot of digital footprints. If something goes wrong in future, nobody can save the system. So we have to be careful on these accounts. When this topic, I came to know this topic is about the cyber hygiene. So since I am also on the verge of retirement, so I was thinking of removing the clutter from my home, some disposable items, as we all do on a regular basis. So I thought, let me do some digital cleaning. My email accounts, old pen drives, and this cloud page, Google Drive hai, it is all cluttered and getting, a lot of information is getting uploaded, and I do not know how to use it. So I was trying to clean the digital cleaning. So because it also doesn't require any money, doesn't occupy much space. So I thought this topic which Mr. Anish ji is taking, that for the cyber hygiene,
the digital cleaning may be one of the step, because we are leaving lot of information which can be misused or taken away by the fraudulent. So with this session, we will come to know a lot of intricacies of the subject, and I hope we will enrich after this discussion, and I wish all the success for this seminar. Thank you. Thank you, sir. And special thanks from Vigilance Department for being an inspirational force for all of us. With this, we are about to begin. I would like to request AGM sir and SDGM sir to occupy seats in the audience. Sir, you can warm up for the lecture. I now invite Sri Mutyala Naidu, Deputy CVO Engineering, to introduce the guest speaker. Namaskar. It's my privilege to introduce today's distinguished guest speaker, Sri Anish Prasad, who belongs to 2002 exam batch of IPS and currently serves as Executive Director, Vigilance Police at Railway Board. Sir has an academic background of BTech from IIT BHU, Masters in Police Management, Diploma in Cyber Law, and Chevening Cyber Security Fellowship from Defense Academy of United Kingdom. With his vast experience as DIG and SP in CBI, Sir created SOPs for network security, ICT maintenance, and supervised implementation of e-governance projects apart from handling administrative and personal matters of CBI. He was awarded with Indian Police Medal for meritorious service by President of India in 2023, and also as the topper of his IPS batch, he was awarded Sardar Vallabhbhai Patel Trophy. Shri Anish Prasad specializes in the emerging topics of cyber and information security, cryptocurrencies and crime, darknet and deep web and cyber law. Sir's interests also include speed runs, martial arts, distance running in full marathons, music, poetry and dramatics. We are lucky to have this versatile officer among us to educate us on the most important topic that is relevant to people of all classes, trades and all age groups. Sir is going to tell the certain example which is going to blow your minds. Thank you, sir, for visiting us, and without further ado, we shall start the lecture. The stage is yours. इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे पीछे गुड मॉर्निंग थोड़ा सा मैं इनफॉर्मल करता हूं सभी को विद द परमिशन ऑफ एजीएम एंड विनयन सर, क्योंकि इस सेशन में अगर आप फॉर्मली बैठेंगे तो पक्का साइबर क्रिमिनल आपके गर्दन निकाल लेगा। इसमें बहुत इनफॉर्मली रहना है हमको, और बहुत सारे सेशंस फॉर्मली होते हैं लेकिन ये सेशन थोड़ा इनफॉर्मली। अच्छा, हिंदी ओके ना, क्योंकि वो मिक्स हिंदी इंग्लिश वो चलेगा। इंग्लिश तो बीच बीच में बोलते रहेंगे सर, तो ऐसे मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, बट ये है कि रनिंग लैंग्वेज में आई विल फील मोर कंफर्टेबल। लेकिन एनीबडी एनी थिंग विच इज़ नॉट क्लियर प्लीज इंटरप्ट मी एंड आई विल रिपीट दैट इन इंग्लिश। देखिए क्या है कि ये सेशन में आपको 2-3 चॉइस और देता हूँ। ये जो आगे बैठे हैं ये तो सो नहीं पाएंगे, लेकिन पीछे वाले सो सकते हैं, और वो जो ऊपर बैठे हैं वो भी सो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये सब अपॉर्चुनिटीज, अभी क्या लाइट वाइट बंद हो जाएगी, आराम से सो सकते हैं। और अगर कोई खर्राटे लेगा ना, स्नोरिंग, तो वो बगल वाला उसको थोड़ा सा ऐसे करने से वो स्नोरिंग बंद हो जाएगा उसका। So please consider this lecture as an opportunity to catch up on the missed sleep schedule. ठीक है? And why I want that some people should sleep, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। 2-4 तो कम से कम सो ही जाना। एक्चुअली हो ये रहा है कि my target is कि at least 10 to 15 people should sleep. But always I am missing my target, and that is causing me a great loss in one of my areas. I will tell you later on.
कि वाई आई हैव दिस सिनिस्टर डिजाइन दैट पीपल शुड स्लीप। देखिए ये सब इसमें इंग्लिश कम है और थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, एंड थोड़ा बहुत इंग्लिश आई हैड इंक्लूडेड बिकॉज इंटेलेक्चुअल्स के बीच आना था, तो कुछ तो लगे कि सामने वाला कुछ लिख के आया है। तो कल से जब से मैं आया हूँ, आई एम जस्ट सीइंग कि इतना मेटिकुलसली हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। सो आई हैव नेवर सीन सच स्मूथ ऑपरेशंस एवरीवेयर। तो कुडोस टू SDGM साहब एंड हिज टीम। तो एवरीथिंग इज सो, मतलब फोटो फिनिश से चल रहा है, जैसे एज इफ आई एम इन अ ड्रीम स्टेट वैसे चल रहा है। सो दिस कोर्स इज अबाउट साइबर ब्लैक बेल्ट। दिस कोर्स हैज बीन डिजाइंड फॉर IIT कानपुर, एंड लास्ट वीक आई वॉज इन IIT कानपुर कोर्स, एंड इसमें सब लेटेस्ट अपडेशंस हैं। सो आई फील गुड कि इसको बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं करना पड़ा अब तक आने के लिए, बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग एवरी 2 weeks दिस प्रेजेंटेशन चेंज, बिकॉज दिस फील्ड इज सो मतलब इतना स्पीड में चीज़ें चेंज होती हैं, शेल्फ लाइफ इज़ वेरी लेस। इस लेक्चर के बाद मतलब आपको चोट नहीं लगेगी, मतलब आपको अटैक होगा भी तो आपको बहुत कम चोट लगेगी, इस चीज़ की मैं गारंटी बताता हूँ। जो लोग जगे होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ 10-15 लोग सो जाएं, बट जो बाकी लोग जगे होंगे उनको मतलब साइबर अटैक और ये जो जितना भी आज डिस्कस होगा ना, इसको प्लीज़ अपने तक मत रखना, आप अपने घर में भी जाके शेयर करना, बिकॉज दिस सम वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर किड्स। बिकॉज सबसे ज़्यादा हमारे घर में प्रॉब्लम है हमारे बच्चे। ये ऐसी जनरेशन है जो कि वाइज पैदा हुई है, दे वर बॉर्न वाइज एज दे क्लेम, तो वी हैड टू अर्न अवर विजडम, बट नेक्स्ट जनरेशन इज बॉर्न वाइज, तो आप उनको बहुत ज़्यादा विजडम दे नहीं सकते हो, इसलिए दे आर द मोस्ट वल्नरेबल जनरेशन। और सबसे ज़्यादा अटैक भी उन्हीं पे होते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान दे नहीं सकते आप, वो बहुत ज्ञानी पैदा हुए। तो इसलिए आप क्या करना कि आज जो ज्ञान यहां से ले रहे हो, वो अपने बच्चों को बोलना कि देखो भाई ज्ञानी, तुम तो अपने ज्ञान से बच जाओगे, लेकिन मुझे ये XYZ ज्ञान मिला है, तो इस ज्ञान को मैं बस तुमको बता के छोड़ रहा हूं, केवल इतना आप कर देना, तो उनके बैक ऑफ माइंड में रह जाएगा। तो प्रोबेबली दे विल बी, इट विल हेल्प देम इन, यहां से हो जाएगा क्या? तभी यहीं से होगा, हाँ यहां से, 1 मिनट। वो जब नया कार चलाते हैं ना, तो थोड़ा सा लर्निंग कर्व होता है। सो द एंटायर क्राइम सीन इज नाउ शिफ्टेड टू इंटरनेट। जैसे AGM सर ने भी कहा, SDGM सर ने भी कहा, एवरीथिंग इज इंटरनेट नाउ। आप लोग जितना भी लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, कोई ऐसा है जो इंटरनेट यूज नहीं करता है? एनीबडी? मतलब एवरीबडी इज यूजिंग इंटरनेट। इनफैक्ट नॉट यूजिंग इंटरनेट इज वेरी डेंजरस। लोग कहते हैं कि, एक मेरे फैमिली में एक ओल्ड अंकल हैं, वो कहते हैं अरे तुम्हारा साइबर वाइबर सब बेकार है, मेरा तो कोई ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, मेरा कोई फेसबुक नहीं है, मैं कोई ऑनलाइन, मैं इंटरनेट ही नहीं करता हूं, मेरा ईमेल भी नहीं है। मैंने कहा आप सबसे पहले मर जाओगे, आपको ये पता ही नहीं चलेगा। और यही हुआ 1.5 years के बाद, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था एक फैमिली गेट टुगेदर में, पता चला कि उनके बैंक अकाउंट में उनका मोबाइल नंबर वगैरह किसी ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगा के चेंज करके ट्रांजैक्शन भी कर लिया, और वो हर महीने अपना बैंक जाते थे, तो उनको पता चला ही हैज लॉस्ट 67,000 इन हिज अकाउंट। फिर मेरे को फोन किया कि अरे क्या करना है? मैं कहा कुछ नहीं करना है, अभी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग लेनी है ताकि घर बैठे हुए देख सको, नहीं तो ऑफलाइन में आपका कुछ भी कर देगा गड़बड़। तो देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू बी ऑनलाइन। बट ऑनलाइन रह के आपको कैसे सेफ रहना है, दिस इज ऑल अबाउट, दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट दैट। देखिए क्या है कि साइबर हाइजीन में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारा इंग्लिश मिलेगा। इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज, बट इन सब्जेक्ट्स में इंग्लिश इज नॉट अ गुड लैंग्वेज।
आपको समझ में कुछ नहीं आता है। इसमें तो थोड़ा बहुत आपका जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसी से आपको समझना पड़ेगा। तो आई क्रिएटेड वन स्लाइड कि मतलब सब सीनियर ऑफिसर्स सिटिंग हियर, तो डेफिनेशन ऑफ साइबर हाइजीन ब्ला 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 ब्ला। वो इंग्लिश देख के मैं ही घबरा गया। मैंने बोला यार ये डेफिनेशन तो नहीं दे सकते, बिकॉज ये तो मुझे ही नहीं समझ में आ रही, तो फिर लोगों को क्या समझ में आएगी। सो आई क्रिएटेड दिस स्लाइड, दिस इज साइबर हाइजीन, there is no English involved. जैसे you brush your teeth and take bath, this is। अच्छा, आप लोग जैसे इंजीनियर्स भी बहुत होते हैं, रेलवेज में तो बहुत इंजीनियर्स होते हैं, और हॉस्टल में सब रहते होंगे अपने टाइम पे। ऐसा कोई था जो मतलब नहाता नहीं हो बहुत दिन तक? मतलब anybody who was not taking bath for days together? कोई तो होगा यार, ऐसे कैसे? कोई तो होगा। देखो, हाँ हाँ, पानी नहीं आता था। तो कितना दिन तक नहीं आया पानी? कितना दिन तक नहीं नहाए पानी के बिना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि डेली नहाता होगा कोई, ये तो हो ही नहीं सकता। 5 days 7 days का है किसी का रिकॉर्ड? 10 days 20 days? मेरा रिकॉर्ड 29 days का है। और वो रिकॉर्ड ऐसे बना, और वो भी सर्दी नहीं है, इट वॉज अप्रैल मंथ। IIT BHU में मैं पढ़ता था, हॉस्टल में दोस्त के साथ शर्त लग गया कि गर्मी लग रहा है यार, नहीं नहाएंगे, और नहीं नहा रहे। तो 5-10 days तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 10 to 15 days थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। 15 to 20 days it was massive. It was so massive कि वी वर एनकरेजिंग ईच अदर कि अरे तू नहा ले, छोड़ ये सब पागलपन है, लेकिन कोई नहा ही नहीं रहा था। और फिर उसके बाद पाउडर, क्रीम, ये सब पूरा लगाया, और उसके बाद वो उससे भी कुछ बदबू नहीं जा रहा है, इतना पसीने का स्मेल, खुद का ही बदबू नहीं टॉलरेट हो रहा है। फिर गए बाजार में, एक महंगा मतलब कॉस्टली डिओड्रेंट खरीदा और डिओड्रेंट लगाया, और एक बहुत मतलब बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई कि इफ यू आर नॉट बेदिंग एंड इफ यू आर बदबूदार, डोंट यूज डिओ, यू विल बिकम महाबदबूदार। and that I did, and the same my fellow also did, and we suffered ourselves for another 7 days before he jumped into the hostel tank and took a bath, and then I won the bet, and 29th day I took a bath. But उसके बाद से ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब मैं नहाया नहीं हूँ। I regularly take bath every day, sometimes twice a day. आज भी नहा के आया हूँ। So don't get bothered. And उससे क्या हुआ कि अब देखो, आपने मोबाइल खरीदा और लैपटॉप you brought. These devices have not taken bath. Since you have bought them, ये नहाया नहीं है कोई डिवाइस, उसमें बहुत बदबू आ रहा है, और इतना ज़्यादा बदबू है कि हैकर को यही चाहिए, एग्जैक्टली यही चाहिए। और आपको इस लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको कि बिना आपकी नॉलेज के किस तरीके से आपका बदबू वाला डिवाइस ऑलरेडी हैकर के पास है और यूज हो रहा है, और यू आर जस्ट सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब वेटिंग टू एक्सप्लोड। That is the critical state of cyber hygiene in India. And you yourself will test your devices and know कि कितना मतलब बदबू उस डिवाइसेस में आ रहा है। तो इस डिवाइसेस को कैसे नहलाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। We don't know how to secure our devices, our WhatsApp, our simple mobile phone, and that is where hacker has a field day. आप लोगों पे अटैक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हैकर के पास टाइम नहीं है। वो इतना ज्यादा खाना अगर आपके सामने रख दे आदमी, तो आपको भूख एकदम से मर जाता है। यू आर नॉट हंग्री एनी मोर, क्योंकि आपको लगता ही नहीं कि इतना सारा खाना आप खा सकते हो। तो वही चीज हो रहा है,
हैकर के लिए एवरीबडी इज अ फूड, तो ही जस्ट पिक्स ईट्स एंड ही उसको कोई स्केर्सिटी नहीं, इसीलिए आप लोग बचे हुए हो. सो दिस इज साइबर हाइजीन. ये थोड़ा बहुत इंग्लिश है क्योंकि हर गैदरिंग में कुछ इंटेलेक्चुअल्स होते हैं. मुझे तो समझ में नहीं आया क्या है, बट ये कुछ इस तरह का है कि जिस तरह से जो मैंने बोला है वही है. बट इंटेलेक्चुअल्स को कुछ पढ़ना भी होता है, तो उसके लिए लाया हूं. इट्स जंपिंग. यस. सो दिस कोर्स इज अबाउट साइबर ब्लैक बेल्ट. नाउ व्हाट इज अ ब्लैक बेल्ट? देखो, ब्लैक बेल्ट के देर आर 3 रूल्स. I can vouch for this because I myself is a second and black belt in Taekwondo, and when we used to do all this martial arts training, तो ये रूल्स हमारे ब्रेन में एकदम इट्स लाइक परमानेंट. द फर्स्ट रूल ऑफ मार्शल आर्ट इज अ ब्लैक बेल्ट इज दैट लॉट ऑफ एक्शंस आर ऑटोमेटिक. जैसे अभी सपोज कोई आप कार ड्राइव कर रहे हो एंड सामने एक ऑब्स्टिकल आ गया, तो आप ऐसा सोचते नहीं हो कि ओह ऑब्स्टिकल आया, अब मुझे अपना राइट लेग उठाना है, ब्रेक पे ले जाना है और उसको प्रेस करना है. इतना आप नहीं सोचते हो, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा. यू इमीडिएटली रेज योर लेग एंड पुट द ब्रेक्स. तो साइबर ब्लैक बेल्ट वो होना चाहिए. अ साइबर ब्लैक बेल्ट, after this course a lot of your actions will be automatic. You should not think कि मुझे ये करना है. All these 2 hours में मैं आपको बहुत सारा छोटा छोटा टिप्स दूंगा which you keep noting in your mind and keep absorbing this and it will become automatic. So first rule is taken care of. The second rule of black belt is कि black belt को हवा की काट समझ में आती है. There is something in the environment, the X factor, which a black belt can sense, which a normal person, an untrained mind will not be able to sense. For example, today you were invited for a cyber lecture. Now one of the employee thought कि अरे यार मैं बहुत पक गया हूँ और मैं 2-3 दिन से काम कर रहा हूँ लगातार और अब मैं इस साइबर लेक्चर को भी झेलूँ. No, it is beyond me. Let me do something about it and permanently put a stop to this lecture series. And he brings a pistol. कि मैं वहां पिस्टल लेके बैठूंगा और अगर साइबर फैकल्टी ने मुझे चाटा तो मैं पिस्टल निकाल के बहुत हो गया ढिशूं. अगर ऐसा कोई प्लानिंग करके आएगा तो एक ब्लैक बेल्ट को समझ में आ जाएगा कि इस सीट पे बैठे हुए व्यक्ति के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है. दैट एक्स फैक्टर. सो कॉन्स्टेंटली ही विल सी दैट पर्सन कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एंड जैसे वो पिस्टल निकालेगा ही विल डक एंड सेव हिमसेल्फ. सो ये जो एक्स फैक्टर है ना, साइबर ब्लैक बेल्ट को अब ये एक्स फैक्टर आ जाएगा इस कोर्स के बाद. आपको जैसे कोई ईमेल आएगा जिसमें कोई लिंक होगा, आपको लगेगा यार ये कोई तो गड़बड़ है, ये इट इज नॉट नॉर्मल. अगर आपके पास कोई फोन आएगा, आपको लगेगा यार कुछ तो गड़बड़ है. ये जो कुछ तो गड़बड़ है ना, दिस विल सेव यू. और यही चीज आपको सेकंड नियम में आज पता चलेगी. और तीसरा नियम ब्लैक बेल्ट का ये थर्ड रूल है कि गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, डोंट हैंडल द सिचुएशन. एक रियल ब्लैक बेल्ट जब तक कि उसकी डेथ पे ना हो जाए, he will not use any of his skills, because if he use his skills he will kill a person. साइबर ब्लैक बेल्ट डिफरेंट है. साइबर ब्लैक बेल्ट का नियम है कि डोंट engage with the situation, get out of the situation, because situation will kill you. Cyber criminals are not one mind. They are an AI driven industry which is having millions and billions of minds. You are only one mind. It is just impossible to take on a cyber criminal. So best is to get out of the situation. Don't engage. और किस तरह से लोग engage करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. So let us start the course and let us be cyber black belt.
This is my second and black belt, sir. So it's just a punch to start. So this is the data. We are all 6.5 hours online. 7 to 8 hours we sleep. 2 to 3 hours in washroom, etc. 8 hours in office. 24 hours over. That is the way we are living now. 6.5 hours. So this is so massive. 702 potential security threats per minute that we are facing. Ab how many of this potential security threat will actually get a victim is all luck. But that is the amount. And Android devices, 40%. Now आप लोग बहुत सारा लोग Android devices use करता होगा, Android phones. But thankfully Union Budget this time has allotted 1900 crores for cyber security. And that is what we had been wanting since ages कि भाई साइबर सिक्योरिटी को कुछ तो करो. तो अभी लग रहा है कि एकदम कोविड टाइप हो गया ये तो, जहां पे एवरी हाउस होल्ड हैज अ स्टोरी. अभी इधर भी हो गया कोविड टाइप. अभी आपको जितना भी आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपको गारंटी मैं बता रहा हूं, आपने सुना होगा आपका कोई नोन पे अटैक हुआ है या आप पे हुआ है. मतलब इट इज सो मैसिव. इसीलिए अभी मतलब सब लोग जग गया है. एंड इसीलिए ये साइबर हाइजीन के भी बहुत सारे लेक्चर्स हो रहे हैं. अब आप देखो, आउट ऑफ द टोटल वर्ल्ड अटैक्स 13.7% इज ऑन इंडियंस. एनीबडी कैन टेल मी व्हाई इंडियंस पे इतना अटैक होता है? पॉपुलेशन सर, यूसेज, डिजिटल. यस, बिल्कुल. और साइबर अवेयरनेस भी बहुत कम है, नेग्लिजेंस भी बहुत है. और मुझे लगता है थोड़ा सा एक कल्चरल इशू भी है. मतलब वी पीपल आर वेरी इमोशनल. हमारा सेल्फ एस्टीम को बहुत आसानी से पंच कर सकते हैं हमको, हमारे इमोशनल अपील करके हमसे. तो ये साइबर क्रिमिनल्स दे यूज इट एज ए टूल कि कैसे इंडियन को थोड़ा सा हल्का सा उसको एस्टीम फोन करेगा कि अरे मैडम आपसे 2 मिनट बात करके ऐसा लगा कि मैं एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेडी से बात कर रहा हूं. तो एकदम से मैडम को लगेगा हाँ मैं तो शुरू से इंटेलेक्चुअल थी. और वो बोलेगा, फिर सर को फोन करेगा कि सर एक्चुअली मतलब आपसे 2 मिनट बात करके लगा मुझे कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं. तो सर भी सोचेंगे अरे मैं तो बहुत एक्सपीरियंस था, ये तो मेरे घर वाले मुझे एमआई समझते हैं. यही आदमी है जो मेरी असली वर्थ पहचान रहा है. तो बस आप चढ़ गए, और जैसे ही आप चढ़ गए वैसे ही बस वो साइबर फिर उसके बाद वो आपको पूरा सब कुछ करना शुरू कर देगा. एंड 47% ऑन यूपीआई रिलेटेड अटैक. अब देखो, अब एक कंप्लीटली इंडस्ट्री बन गया है ये. एंड दिस इज कॉल्ड एज पिग बुचरिंग. तो क्या होता है कि, और उसमें क्या होता है कि इंडियंस को, जैसे मैडम ने कहा कि इंडियंस कराते हैं अटैक. दीज इंडियंस दे आर टेकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज देयर. उनका एक एड आता है कि आपको म्यांमार में जॉब लग गया. आप अपने घर वालों को बोलिए कि दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगर कोई जॉब का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, प्लीज डोंट गो लाइक दिस. बिकॉज वॉट दे विल डू इज, वंस द पर्सन लैंड्स देयर, क्योंकि आजकल एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी कीड़ा है. हर एक को अपने घर में एक कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए. अब वो कंप्यूटर इंजीनियर पैदा तो हो जाता है, अब उसको जॉब नहीं मिलता है. तो उसको कैपिटलाइज करने के लिए ये प्रोग्रामर्स को बुलाते हैं, ये करते हैं. और इंडिया में मैसिव कंप्यूटर के कोर्सेज चलते हैं, बट जॉब्स नहीं है. तो वहां से एक ऐड देता है वो कि आ जाओ म्यांमार में कंप्यूटर प्रोग्रामर जॉब. तो आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हो एंड यू गो. वहां पे आपका पासपोर्ट ले लेगा, सब लेगा. अभी केरला से 7 people absconded from a cyber den, and when they absconded somehow, and then they told the story to the world कि it is a very torturous world out there. हम लोगों को 10 pigs का टारगेट दिया जाता था कि every day you have to butcher 10 pigs. That is the terminology that is used. So victims are considered as pig. अब आप देखो, 15 lakh employees are there in this industry, in which only Myanmar and Cambodia has 2.5 lakhs. And this Miss Guo,
शी इज अ चाइनीज, आप इसको गूगल करके पढ़ना इसकी स्टोरी. शी बिकेम अ वेरी पावरफुल लेडी इन फिलीपींस. So 45% of cyber crime in India originate from Cambodia, Myanmar and Laos. This is MHA data. So these countries have now become, एक समय नाइजीरिया का स्कैम आता था बहुत साल पहले, बट नाइजीरिया सब पीछे छूट गया, अभी सब साउथ ईस्ट एशिया है. एंड हाउ डज इट हैपन इज, दिस हैपन्स थ्रू म्यूल अकाउंट्स. अब व्हाट आर म्यूल अकाउंट्स, इसको कैसे यहां से क्लिक करते हैं. देखो दिस म्यूल अकाउंट्स, सो एंड दीज आर नॉट फ्रॉड अकाउंट्स, दीज आर रियल जेन्युइन अकाउंट्स, प्रॉपर केवाईसी. सो इसको म्यूल अकाउंट, तो आपको जैसे ही लूटेगा वो, सो म्यूल एज अ नेटवर्क इज अ सर्विस अवेलेबल इन डार्क नेट. जैसे सपोज आपको साइबर क्रिमिनल बनना है, रेलवे में काम थोड़ा कम हो गया, आप बोर हो रहे हो, तो आप बोलो यार ऐसा है साइबर क्रिमिनल बनते हैं, तो यू विल ड्यूप समबडी, बट उस पैसे को कहाँ लोगे, अपने अकाउंट में तो लोगे नहीं, तो यू वुड रिक्वायर म्यूल अकाउंट्स. तो आपको डार्क नेट पे जाना है वेर यू कैन हायर म्यूल अकाउंट्स. तो वो आपसे पूछेगा कितना म्यूल अकाउंट चाहिए, तो आप बोलोगे मुझे 1000 म्यूल अकाउंट से हो जाएगा, तो आप उसको 5 लाख रुपीज दे दो, वो आपको 1000 म्यूल अकाउंट्स दे देगा ऑन रेंट. सो दैट इज हाउ दिस नेटवर्क रन्स, एंड दीज म्यूल अकाउंट्स आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. वहां पे होती है प्रॉब्लम. एंड 30,000 इंडियंस ये सब टूरिस्ट वीजा पे जाके गायब हो गए, बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन साइबर डेंस. So MHA had to give this warning that people applying for job in these countries, please be very careful, especially the computer jobs, call center jobs. अब यहाँ से आंध्रा से तेलंगाना से lot of people apply and they get trapped. So please make your relatives alert. This world is not simple. 86% of Indians, एक McAfee का सर्वे है, they share their voice online. 66% Indians, they will respond to immediate urgent financial help. And 50% cyber crimes are UPI and internet banking. अब these are some kind of common attacks. ये तो सुना होगा आपने ना, फिशिंग. फिशिंग तो क्या होता है आप बता सकते हैं? फिशिंग, एनीबडी? फिशिंग, अभी सबको सैंडविच अच्छा लग रहा है. हाँ नहीं सर, वो फिशिंग इज रिलेटेड टू ईमेल्स. सो इट्स ऑल द सेम. सो इफ यू गेट अ लिंक थ्रू ईमेल, इट इज फिशिंग. इफ इट इज थ्रू अ वॉइस कॉल, इट इज विशिंग. इफ इट इज थ्रू SMS, इट इज स्मिशिंग. इफ इट इज थ्रू QR कोड, इट इज कुशिंग. क्या गजब है यार. और फिर अभी आ गया एक मिशिंग, और मैंने कहा ये कौन सा नया कीड़ा आ गया, मिशिंग. तो मिशिंग का जब डेफिनेशन देखा, तो मिशिंग कंप्राइजेस ऑफ स्मिशिंग, कुशिंग एंड विशिंग, बिकॉज दे आर ऑल थ्री डन थ्रू मोबाइल फोन्स. सो M फॉर मोबाइल, M फॉर मिशिंग. ये सब जार्गन है, इसके चक्कर में मत पड़ो. बेसिकली अलग अलग मोड से जो लिंक्स आते हैं हमारे पास, दैट इज दीज टर्म्स आर. फिर है ईमेल स्कैम्स. ये आई गॉट दिस ईमेल है ना, कि IB और रॉ और ये सब चीजें, मतलब ये बहुत ही पुअर इंग्लिश है, और फॉरेंसिक इक्विपमेंट है हमारा. सो एनी विक्टिम टू विजिट जुवेनाइल पोर्नोग्राफिक साइट्स विदाउट लिविंग, तो हम सब पकड़ रहे हैं आपको, इस तरह से कुछ मेल आता है. और लास्ट में देखिए, टू वॉर्न इज टू बिफोर हार्म. क्या इंग्लिश है. बट अब ऐसा नहीं होता है, लोग तो इससे भी डर जाते हैं. अब ऐसा नहीं होता है. अभी तो क्या है, चैट GPT बनाता है, बहुत ही बढ़िया बनाता है. अभी तो यू विल नॉट फाइंड एनी ग्रामर मिस्टेक्स एंड ऑल. तो सो ईमेल स्कैम्स अब बहुत रैम्पेंट हो गए. दूसरा है फेक इन्वेस्टमेंट एप्स. नाउ दिस फेक इन्वेस्टमेंट एप्स क्या है, दिस चाइनीज, ही एक्चुअली क्रिएटेड अ फेक इन्वेस्टमेंट ऐप. और सभी को पैसा तो कमाना ही होता है. उसमें क्या होता है, आपको एक ऐप आप डाउनलोड करते हैं. उस ऐप से क्या होता है, यू इन्वेस्ट 500 रुपीज, इट बिकम्स 1000 रुपीज नोशनली. वो उसमें एक डैशबोर्ड आ रहा होता है, मार्केट गिर रहा है लेकिन आपका स्टॉक उड़ रहा है.
आपको पता नहीं है फंडामेंटल्स, तो हो रहा है कि आपको लग रहा है अरे यार ये तो अच्छा है यार, वो 500, 1000, 10,000 तक हो जाता है वो। फिर आप सोचते हो यार विड्रॉ कर लूँ, तो जैसे ही आप विड्रॉ करते हो वो आपका बिहेवियर नोट कर रहा होता है सारा। विड्रॉ करते हो तो आप 10,000 एक्चुअली में विड्रॉ कर लेते हो, एक्चुअली में। फिर आपको लगता है कि यार वो उसका बिजनेस रिस्क है भाई, उसने 10,000 दे दिया आपको। बट जुए का एक नियम है, मतलब गैम्बलिंग हैज अ रूल, गैम्बलर विल ऑलवेज लूज। तो जैसे आपका 10,000 आपको प्रॉफिट हो जाता है, आप वो पूरा का पूरा 10,000 फिर से लगाते हो, और फिर उसके बाद वो फिर बढ़ता है। नाउ APK इज एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज which you should never download any app from APK. Please don't do that. आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करना है अगर अपने मोबाइल फोन पे, ऑलवेज गो टू अ प्ले स्टोर, है ना। क्योंकि प्ले स्टोर पे अगर किसी ऐप को अपलोड करना है तो इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ चेक्स, तो उसमें आप मालवेयर नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए प्ले स्टोर से ही करना है आपको, और जो आईफोन पे है उनको ऐप स्टोर से ही करना है। बट APK से टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, नेवर एवर डाउनलोड एनी ऐप फ्रॉम दैम, क्योंकि ये सब मैलिशियस है, इसमें कोई चेक्स नहीं है। तो ये APK से डाउनलोड करा के एंड यूज्ड टू ड्यूप, फाइनली ही वाज अरेस्टेड। दूसरा है मिस्टेकन क्रेडिट फ्रॉड। नाउ यू विल सडनली गेट अ SMS, योर बैंक अकाउंट XXXX3432 credited 20,000 rupees, ऐसा आता है ना मैसेज। एंड देन सडनली यू से कि अरे 20,000 आया, हाँ वो रेलवे का TADA होगा जो कि 4 महीने बाद मिलता है। तो आप सोच लेगा ऐसा कुछ मिला होगा। फिर एकदम से फोन आएगा, अरे भाई साहब वो सॉरी आपके अकाउंट पे UPI हो गया गलती से, मेरी मदर एकदम इल है, वो मरने वाली है, और मैं उसके लिए दवाई लेने गया था, और वो 20,000 का दवाई है, और रोने लग जाएगा कि सर प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरा पैसा वापस कर दो। और आप सोचोगे इंडियंस आर वेरी हेल्पफुल, फाइनेंशियली इमोशनल पीपल, तो बोलेंगे अरे यार बेचारे से नंबर गलत हो गया होगा, ये तो गलती हो ही सकती है, तो आपने उसको 20,000 वापस कर दिया। बाद में आपने देखा वो 20,000 तो आया ही नहीं था आपके पास। अगर मोबाइल नंबर से मैसेज आ रहा है तो फ्रॉड है, इट इज अ फ्रॉड। और अगर ये वैसा आ रहा है BTI, NX, SBI, तो ये जेन्युइन है। सो नेवर रिस्पॉन्ड टू सच मैसेजेस जो मोबाइल नंबर से आ रहे हैं, बिकॉज वो फ्रॉडस्टर भेजता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मिस्टेकन। और अगर ऐसा कोई जेन्युइनली आ भी गया आपके पास और फिर वो बोलता है पैसे वापस करो, तो आप उसको बोलो कि देखो भाई साइबर ब्लैक बेल्ट हूं, ऐसे तो नहीं करूंगा, आप आ जाओ, मैं भी थोड़ा पैसा देके चला जाता हूं आपके पास, वहां आपको फिजिकली आई विल हैंड ओवर द मनी, या पुलिस स्टेशन के बाहर मिल लेते हैं, आधे तो पुलिस स्टेशन के नाम से गायब हो जाते हैं। कुरियर स्कैम, अभी एक फोन आता है कि आपके नाम पे कुरियर मिला, उसमें था ड्रग्स, अब आप मरे। अब हम लोग तो ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के, तो हम लोग तो इमीडिएटली अपने किसी पुलिस वाले को फोन करते हैं कि अरे यार, तो बता देता है कि नहीं नहीं यार कोई नहीं, सब ठीक है। बट इसमें लोग मर जाता है बुरी तरह से, और एकदम से घबरा जाता है। फिर वो कहता है कि देखो ऐसा है कि अब आप तो ट्रैप हो गए, आपका आधार नंबर ये है, सारी जानकारी रखेगा वो आपके बारे में। एंड देन ही स्टार्ट्स एक्सटॉर्टिंग मनी थ्रू UPI मोस्टली। अब देखो अभी पीछे बहुत अच्छा हुआ, एक दिन मेरा जो ड्राइवर है वो मेरे घर पे एकदम भाग के आया, सर सर बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। क्या हो गया? बोला कि सर वो मेरे नाम पे ना ड्रग्स मिला है, वो मुंबई कस्टम से फोन आया और मेरे नाम पे ड्रग्स मिला है। तो मैंने कहा अच्छा तू ड्रग्स का धंधा कर रहा है? तो कह रहा है कि नहीं नहीं सर, ड्रग्स का मैंने सेटल भी कर लिया है सर, मैंने 1 लाख में सेटल कर लिया है। तो मैंने कहा सेटल कर लिया तो मेरे पास क्यों आया है? कह रहा सर हमको UPI करना नहीं आता है। मैंने कहा ब्रो यू आर सो लकी, तू तो बहुत फॉर्चुनेट है ब्रो, तू मत सीख, क्योंकि तू सीखेगा तो मरेगा। तो एकदम से समझा नहीं वो। मैंने कहा अच्छा है तेरे को नहीं आता UPI करना, नहीं तो अब तक तू 1 लाख दे भी चुका था। फिर उसको मैंने समझाया कि ये सब फ्रॉड है, उसको बहुत देर तक कन्विंस करना पड़ा मुझे कि इट इज फ्रॉड। वो बोला नहीं साहब हम फंस जाएगा, हमको पुलिस ले जाएगा। मैंने कहा यार हम बचाएगा ना तेरे को, तू पुलिस वाला आते ही ना मेरे को फोन कर देना। तो इतना डरा हुआ था वो।
तो वो थैंकफुली उसको यूपीआई नहीं आता था, तो इग्नोरेंस वाज ब्लिस। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है कि यूपीआई आता ही नहीं है तो फ्रॉडस्टर को बोल दो कि साहब आता ही नहीं मेरे को यूपीआई। OLX, अब आपके घर पे कोई चीज पड़ा है, अब आपने बेच दिया, मैडम ने लगाया ऐड पुराने लैपटॉप का, हस्बैंड को बताया नहीं, क्योंकि हस्बैंड तो कोई चीज बेचने ही नहीं देता, पुरानी पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं, वाइफ परेशान है, हस्बैंड को प्रॉब्लम है, बेचने ही नहीं देता, तो मैडम ने दे दिया ऐड OLX पे 11,000 रुपीज ओल्ड लैपटॉप। अब मैडम ने सोचा कि इसका कोई 5,000 भी नहीं देगा, लेकिन मैं 11 से स्टार्ट करती हूँ। तुरंत एक कॉल आता है, मैडम नमस्कार, आपका लैपटॉप तो बहुत अच्छा है, थैंक यू, अब ये मेरे को बेटी के लिए पसंद आ गया है, मैं आर्मी का मेजर हूँ, या मैं मतलब सिक्योरिटी फोर्स में हूँ, RPF में हूँ, CISF में हूँ, तो जनरली फोर्स वालों का थोड़ा इज्जत रहता है कि भाई ये ठीक ठाक लोग हैं, तो आप उनको बिलीव करने लगते हैं। फिर कहता है कि मैडम 1,000 रुपीज़ मैं अभी दे रहा हूँ बुकिंग अमाउंट, बाकी 10,000 मैं इवनिंग तक दे दूंगा। भाई नहीं नहीं आप आराम से दे दीजिएगा। नहीं नहीं मैं आपको दे दूंगा पहले पैसे। 1,000 रुपीज़ आपको जेन्युइनली दे देगा। उसके बाद शाम को फोन करेगा कि आई एम ट्राइंग टू पुश 10,000 रुपीज़, लेकिन जाता नहीं आपके अकाउंट में, तो मैं एक QR कोड भेज रहा हूँ आपके पास, आप प्लीज उस QR कोड से मेरे को पेमेंट ले लीजिए मेरे से। अब वो QR कोड में 10,000.00 की जगह 1,00,000.0 होगा। वो डॉट आप देखोगे नहीं, क्योंकि आप तो आर्मी और ये, और वो पहले ही आपकी बहुत तारीफ कर चुका है कि लैपटॉप की शक्ल देख के ही लगता है कि आप कितनी इंटेलेक्चुअल रही होंगी, तो वो आप सोच ही नहीं सकते कि वो कुछ गड़बड़ है, और आपके बैंक से 1,00,000 रुपीज निकल जाता है। और भीम UPI वगैरह में यू कैन प्री कॉन्फ़िगर कितना अमाउंट का QR कोड आपको बनाना है, एंड यू कैन सेंड अ QR कोड। QR कोड से कभी पैसा आता नहीं है, हमेशा जाता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। QR कोड इज नेवर टू रिसीव मनी, इट इज ओनली टू सेंड मनी। ब्रूट फोर्स, अब जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में क्या होता है कि देर आर अल्फाबेट्स, देर आर नंबर्स। Your password will be a combination of numbers, alphabets and special characters. That's it. It cannot come out of the keyboard. अब अगर एक कंप्यूटर millions of calculation per second करेगा and he tries all the combinations, so password break हो जाएगा। समझ गए आप? तो this technique is called as brute force. अब brute force को कैसे प्रिवेंट करते हैं? कैप्चा। कैप्चा आप जानते हैं? वो टेढ़ा मेढ़ा लिखा होता है ना। एनीबडी कैन टेल कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है? कैप्चा का फुल फॉर्म होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटिंग टर्म, इट इज अ ट्यूरिंग प्रोसेस। सो इट इज सेड कंप्यूटर ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। दिस इज द फुल फॉर्म। So in this Turing process, a computer gives another problem to a computer, checking whether the computer solves it or a human being solves it. इसीलिए वो टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं। तो ये ब्रूट फोर्स है। अब सेक्सटॉर्शन, देखिए क्या है कि ये जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं या टेलीग्राम यूज करते हैं, एक मैं आपको साइबर ब्लैक बेल्ट का एक रूल और दे देता हूं आपको इसमें, कि ये जो व्हाट्सएप है ना, आज साइबर ब्लैक बेल्ट बनने के बाद यू विल नेवर एवर यूज योर व्हाट्सएप फॉर एंगेजिंग सम अननोन नंबर, कभी भी नहीं। यू विल नेवर पिक अ कॉल, अननोन कॉल ऑन व्हाट्सएप, you will never pick a video call on WhatsApp, and you will never engage in a chat with an unknown number in WhatsApp. क्लियर है ना? बिल्कुल 80% आपकी सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी। 80%। You will never be duped if you do these three things. WhatsApp is only for your personal communication. आपको कोई भी आपका अपना आदमी WhatsApp से कॉल नहीं करेगा। सपोज मैं आपका कोई डॉटर है या सन है, आप सोच रहे हो अरे यार वो तो बाहर पढ़ रहा है, वो सडनली उसका कॉल हो सकता है, उसका कॉल व्हाट्सएप थोड़ी होगा। आप कोई आपसे मोबाइल मांगे डिस्ट्रेस कॉल के लिए, आप उसको नॉर्मली अपना मोबाइल दे दोगे, आप व्हाट्सएप खोल के थोड़ी दोगे उसको। तो व्हाट्सएप इज ओनली फॉर पर्सनल पर्पसेस। रिमेंबर, कभी भी आप व्हाट्सएप पे अनजान कॉल मत उठाना ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल मत उठाना। कोई अनजान चैट से बात नहीं करना, किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करना।
अगर आपको फिर भी बहुत लग रहा है कि नहीं ये कोई नोन हो सकता है, तो कॉपी दैट नंबर, गो टू योर मेन डायलिंग पैड एंड देन डू अ कॉल बैक. नेवर कॉल बैक थ्रू व्हाट्सएप. क्योंकि क्या होता है, जो अपना मेन कॉल होता है, इट इज रूटेड थ्रू अ BTS, बेस टर्मिनल स्टेशन. सो देयर आर लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी चेक्स विच आर ऑलरेडी इन बिल्ट इन द सिस्टम. बट व्हाट्सएप इज व्हाट्सएप, मतलब देयर इज नो नथिंग इन बिटवीन, है ना. सो दैट बी वेरी वेरी केयरफुल. अब सेक्सटॉर्शन कैसे होता है? यू विल गेट अ व्हाट्सएप कॉल. तो एक कॉल आया व्हाट्सएप का, अननोन वीडियो कॉल. उठा लिया, बस एक बार उठा लिया ना आपने. सो दीज पीपल आर सो वेल ट्रेन्ड कि फिर आप नहीं बच सकते. तो उठा लिया. उठाते ही वहां पे एक लेडी है जो बहुत ज्यादा रो रही है. अब प्लीज काटिएगा मत, काटिएगा मत, काटिएगा मत. अब आप एकदम से बात करने लगते हो और फिर 2-3 मिनट के अंदर ही शी लाइक मेस्मराइजेज यू या हिप्नोटाइजेज यू. फिर कन्वर्जेशन करती रहती है, आप उसकी हेल्प करने लगते हो. फिर वो डिसरोबिंग शुरू करती है और आपका वीडियो बनता रहता है. और फिर आपके पास एक थ्रेट कॉल आता है कि ये सब करते हो आप फोन पे, अभी आपकी वाइफ को भेज रहा हूं. और बहुत लोग लाखों रुपया लिटा चुके हैं इसमें. बहुत सारे पुलिस वाले, आर्मी वाले फंसे हैं जो फैमिली से दूर रहते हैं. ये लोग बहुत ज्यादा सेक्सटॉर्शन में फंसे हैं. रैंसमवेयर, रेलवेज पे, जैसे रेलवेज का बहुत सारा क्लाइंट डेटा है एंड इट इज क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ क्लाइंट्स. नाउ सडनली वो कंप्यूटर खोला एंड इट इज क्रिप्टो लॉक्ड. और वो बोलेगा कि साहब इतना क्रिप्टो करेंसी में हमको पेमेंट कर दो, तब हम आपको आपका डेटा दे देंगे, नहीं तो विल डंप इट इन द डार्क नेट. तो दिस इज रैंसमवेयर. ये अटैक्स भी बहुत कॉमन है. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. नाउ डीडॉस क्या होता है? सपोज अमेजॉन का दिवाली सेल आया और मैं एक हैकर हूं, मैंने फोन किया अमेजॉन को कि भाई अमेजॉन, तुम्हारा दिवाली सेल आ रहा है, तुम बहुत पैसे कमाने वाले हो, अब मुझको 1 करोड़ प्रोटेक्शन अमाउंट चाहिए, नहीं तो मैं डीडॉस कर दूंगा. अब व्हाट इज डीडॉस? डीडॉस इज कि 1 करोड़ 5 करोड़ डिवाइसेस एट सेम टाइम दे लॉग इन टू amazon.in. सो व्हाट विल हैपन? वेबसाइट क्रैश. तो आपको वो खरीदनी अपनी वॉशिंग मशीन, तो आपने देखा अरे यार अमेजॉन की वेबसाइट तो काम नहीं कर रही, तो यू गो टू फ्लिपकार्ट एंड तो कंपटीटर्स गेन कर जाएंगे. सो 2 minutes ऑफ डीडॉस ऑन अमेजॉन इज crores and crores ऑफ लॉस एट अ दिवाली टाइम. सो दिस इज डीडॉस. अब ये देखो, जो 10 करोड़ डिवाइसेस हैं, ये कहां से आते हैं? दीज डिवाइसेस आर आपके और मेरे वो बदबू वाले डिवाइसेस जो हमने खरीदा हुआ है और आज तक नहाया ही नहीं. वो डिवाइसेस है जो डीडॉस में यूज होता है. अब एक नया स्कीम आ गया है, बग्ड फोन थ्रू लकी ड्रॉ स्कैम. अब ये एक बड़ा इंजीनियस आइडिया आया. देखो क्या किया, ये बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक सिम कार्ड डलवाया. यहाँ हैदराबाद में भी हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ भी बहुत सॉफ्टवेयर वाला है घूमता है. और ये जो अच्छा तैराक होता है ना, वो डूब के मरता है ना. somebody who is an expert in swimming, he dies in the swimming pool. That is the idea. क्यों? Because वो cautious नहीं होता इतना, उसको मालूम, उसको लगता है बहुत एक्सपर्ट हूं मैं. ये बंदा सिम कार्ड लिया, जाके सिम कार्ड लेके घर पे आ गया. अब घर पे आया तो 2 बंदे आए उसके घर पे और बोले कि सर ऐसा आपने सिम कार्ड लिया है, ये सैमसंग का लेटेस्ट मोबाइल फोन सिम कार्ड के साथ फ्री है. 35,000 का मोबाइल फोन फ्री, किसको बुरा लगता है? वो 35,000 का मोबाइल फोन रख लिया और उसने सिम कार्ड उस मोबाइल फोन में डाल दिया और उसमें सब बैंकिंग की ऐप वे वो सब डाल दिया. 2.8 करोड़ रुपया उसका चला गया. 2.8 करोड़. ऑल हिज सेविंग्स, ऑल हिज बैंक्स वर एम्प्टीड, सब खत्म. सो इफ यू यूज अ बग्ड फोन, सो 35,000 का इन्वेस्टमेंट, 2.8 करोड़ का प्रॉफिट. तो हमारा मोबाइल मल्टीपल वेज में मिसयूज होता है. डीडॉस होता है, एक क्रिप्टो जैकिंग होता है, वो मैं आपको बताऊं. क्रिप्टो जैकिंग, वो जो बिटकॉइंस की माइनिंग करते हैं, वो हमारे मोबाइल से चलती रहती है, हमें पता ही नहीं है. हमारा मोबाइल बस गर्म रहता है. तो हम सर्दी में बोलते हैं कि हाँ ठंड तो बहुत है लेकिन मोबाइल गरम गरम अच्छा लग रहा है. अरे वो मोबाइल गरम क्यों हो रहा है ये तो सोचो, उसके पीछे कुछ चल रहा है. अब लोग इतने टेक्निकल नहीं होते हैं तो समझ में नहीं आता उनको.
तो ये मोबाइल मल्टीपल वेज में मिसयूज होता है। अब यूपीआई फ्रॉड्स, देखो यूपीआई एज अ टेक्नोलॉजी वी आर द वर्ल्ड लीडर्स। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी रियल टाइम मनी ट्रांसफर, इवन यूएस में भी रियल टाइम नहीं होता मनी। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे रियल टाइम मनी ट्रांसफर यूपीआई के थ्रू। अब दिस यूपीआई टेक्नोलॉजी इज वेरी रोबस्ट। प्रॉब्लम हमारे ब्रेन में है, हमारा भेजा इज नॉट रोबस्ट। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि यूपीआई से हम लोग कभी भी क्यूआर कोड शेयर कर देंगे, कभी भी हम ओटीपी बता देंगे। तो क्यूआर कोड भी जबरदस्ती स्कैन नहीं करना किसी का। वो रेस्टोरेंट्स में मेन्यूज होते हैं, वो भी अब क्यूआर पे आ गए हैं कि क्यूआर कोड, स्कैन क्यूआर कोड। तो मैंने रेस्टोरेंट में उसको बुलाया, मैंने बोला कि इफ आई स्कैन इट वेयर डज इट टेक मी? बोला सर रेस्टोरेंट की वेबसाइट पे आपको ले जाता है। तो मैं रेस्टोरेंट की वेबसाइट पे गया तो वहां पे HTTPS नहीं था, है ना, HTTP सिक्योर नहीं था। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S होना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसको बोला यार तो अनसिक्योर्ड साइट है और तुम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इन सबको तुम अनसिक्योर्ड साइट्स पे पॉइंट आउट कर रहे हो यार। तो उसको समझ में ही नहीं आया कि सर मैनेजर से बात करिए, मैनेजर को भी नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं कहा यार मुझे यार पेपर मेन्यू ला के दे दे, नहीं तो मैं रेस्टोरेंट चेंज कर रहा हूँ। आई विल नॉट स्कैन दिस बिकॉज आई नीड टू बी वेरी श्योर कि मैं किस साइट को विजिट कर रहा हूँ अपने डिवाइस। तो ये सब चीजें ध्यान देना। तो यूपीआई में मैं क्या करता हूँ, जैसे आप लोगों को भी मतलब मैं शेयर करता हूँ कि हाउ आई हैंडल, मे बी इट्स नॉट परफेक्ट बट ना अभी तक तो मैं सेफ हूं। आई डोंट हैव यूपीआई ऑन एनी ऑफ माई मेन सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट या मेन अकाउंट जहां पे पैसा है। आई डोंट कीप यूपीआई देयर। एक फालतू का अकाउंट खोल रखा है हमने, मेरी और वाइफ का जॉइंट अकाउंट है जिसमें कुछ पैसा नहीं होता, उसमें मैंने यूपीआई लगा रखा है और एवरी मंथ 25,000 अपने मेन अकाउंट से उस यूपीआई अकाउंट में डाल देता हूं। वहां से वो फल वाला, सब्जी वाला, ये सब चलता रहता है। जब उसमें पैसा खत्म होता है विद इन 10 seconds आई कैन ट्रांसफर मनी अगेन इनटू दिस। तो कभी मुझसे गलती हो गया, कोई क्यूआर स्कैन कर लिया, कोई ये हो गया, तो मैक्सिमम हिट मुझको लगेगा 25,000। और मुझे लगता है कि इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूं क्योंकि मेरा टैक्सी वैक्सी में बच जाता है पैसा। और पहले ना मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता था कि बहुत लॉस हो जाता है कि यार कुली ने ज्यादा ले लिया, 100 रुपीज का रेट था, ये 150 रुपीज, कोई और कुली आया भी नहीं मेरे पास, यही कुली से मेरे को डील करना पड़ा, ऑटो वाले ने ज्यादा ले लिया, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता था। तो मैंने सोचा कि एक कुछ तो तरीका निकालूं। तो मैंने अपना एक नोटपैड में एक वो लिख दिया कि मैं पूरा लाइफ अगर मैं कितना जीऊंगा मैं। तो एक दिन भगवान मेरे से खुश हो गए, ही जस्ट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर मी, God himself, and said कि यार I am very happy with you because I have made you very beautiful। मैंने कहा अरे कैसे? बोले आपका चेहरा पीछे तक है। मैं तो ये यहां तक रोकना ही भूल गया चेहरे को, मैं बनाते ही चला गया। ये जो बाल वाले हंस रहे हैं ना, इनको मालूम नहीं है कि गंजे कितने लकी होते हैं। और अगर इनको लकी होना है तो इनको हमारी तरह होना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही लकी नहीं हो पाएंगे। तो फिर भगवान ने कहा कि यार आई हैव थॉट कि आई विल गिव यू 100 years लाइफ, तो तू 100 साल जिएगा। मैंने कहा चलो गुड, थैंक यू गॉड। तो मैंने सोचा यार जब 100 साल पे मरना है तो ऐसे ऐसे लॉस करूंगा तो फिर बड़ा दुखी हो जाऊंगा। तो फिर मैंने एक लॉस अकाउंट बनाया कि 5 लाख रुपीज का लॉस अकाउंट, कि जब जब ये छोटा मोटा लॉस होगा ना मैं उसमें से माइनस करता रहता हूँ, खून नहीं जलाता। अभी भी उसमें 3.5 लाख रुपीज बचा हुआ है उस लॉस अकाउंट में, और मेरी एज 50 हो गई, अभी 50 years और जाना है मेरे को। तो आप देखो हाफ लाइफ आते आते मेरा अभी 3.5 lakhs के लेसन और ले सकता हूं मैं। तो आप भी ऐसे ही करो कि जो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर भी आपको लॉस, कहीं क्यूआर कोड, कहीं ओटीपी आपको शेयर करने की टेंडेंसी है, तो आप अपना अकाउंट ही यूपीआई का ऐसा रखो जो आपके मेन अकाउंट से कनेक्टेड ना हो। नॉट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ ब्रेन, क्योंकि आप किस सर्कमस्टांसिस में होगे आपको मालूम नहीं। अब मैट्रिमोनियल, तो रेलवे में लड़का सेलेक्ट हो गया, पेरेंट्स ने कहा अब हम इसकी शादी करेंगे। मैट्रिमोनियल एड निकाला कि हमको बहू चाहिए, हमारा लड़का ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल, रेलवे एम्प्लॉय, परमानेंट जॉब, परमानेंट जॉब एंड मतलब
ही इज वेरी स्किल्ड और बड़े अपने लड़के तो सब अच्छे ही लगते हैं. नाउ वी नीड ब्राइड की क्वालिटीज लिख दी. सुंदर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, कमाऊ होनी चाहिए, गाली सुनना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को जवाब नहीं देना चाहिए, बच्चे पालना आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, एकदम लेबोरेटरी में बनी बहू चाहिए. ऐड दे दिया, फोन आया, हेलो भाई साहब, आपका ऐड देखा, बहुत अच्छा लगा, आपके हीरे के लिए मेरे पास एक नूर है और आपके हीरे की प्रोफाइल से नूर इस कदर इंप्रेस्ड है कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया है. तो आपको लगा बढ़िया है यार, नहीं मिलते हैं हम लोग, फैमिली टर्म्स करते हैं कि नहीं वो मिलेंगे बाद में, पहले तो नूर का फोटो भेज रहा हूं. तो पहले तो फोटो आ गया नूर का, ओ आपको लगा ये तो वाकई नूर है. और आपका जो सो कॉल्ड हीरा है, सो कॉल्ड, वो भी खुश हो रहा है कि अरे ये तो नूर है. अच्छा, नूर मिल नहीं रही है, सब ऑनलाइन चल रहा है. फिर नूर ने गिफ्ट भेज दिया और हीरा और खुश हो गया कि ये तो नूर बहुत बढ़िया है. वो नूर किसी प्राइवेट सेक्टर में कंसल्टेंट है, वो हीरे से ज्यादा पैसा कमाती है. तो और जहां विदेश में घूमती है तो पहले महीने तो नूर देती है कि डार्लिंग मैं जर्मनी गई थी तो तुम्हारे लिए मैंने एक टाई खरीद ली, कि डार्लिंग मैंने ये वॉच तुम पे बहुत सूट करेगी. अब आपको लगा यार ये परिवार बहुत अच्छा मिल गया. अब उसके बाद वो नूर फंसने लगती है कि डार्लिंग मैं यूके में हूं, मैं फंस गई, मेरे को इतना पैसा चाहिए, मैं आई विल रिटर्न यू नेक्स्ट मंथ. अब ऐसे धीरे धीरे 4-6 महीने में ये 3-4 लाख नीचे आ जाता है हीरा. फिर इसको शक होता है कि नूर मिल क्यों नहीं रही है, और फिर बोलता है कि नूर मैं तुमसे मिलूंगा. नूर कहती है मिलूंगी मैं जानू, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी. बोले जिंदगी गई भाड़ में, पहले मिल मेरे से. और फिर वो नूर गायब हो जाती है मैट्रिमोनियल साइट से. तो इस तरह के बहुत फ्रॉड होते हैं. तो जो अगर शादी करो ना, थोड़ा जान पहचान में थोड़ा समझ के, वो ज़्यादा सेफ रहता है. अब ये यूएसबी ड्रॉप अटैक, अब क्या, कॉफी पीने गए कॉफी शॉप में, वहां कॉफी पी रहे हैं, एक पेन ड्राइव बगल में पड़ी है. अब बार बार मुंह उधर जा रहा है. कॉफी पी रहे हैं कि नहीं पेन ड्राइव की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, मैं कोई साला उठा ही गिरा हूं क्या, फालतू नहीं उठाऊंगा. अब 3-4 मिनट तक तो आपने रजिस्ट कर लिया, उसके बाद राजू के काम आएगी. और घर पे गए, बेटा राजू बहुत बढ़िया पेन ड्राइव तुम्हारे पापा गिफ्ट लाए हैं, और राजू ने उसको लगाया अपने कंप्यूटर में और राजू का काजू बन गया. तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाली चीज मत उठाना. ये पेन पेंसिल स्टेशनरी ठीक है, इससे आप सेफ रहोगे और वो किक भी मिलेगा आपको. सरकारी पेंसिल. अभी डेटिंग ऐप स्कैम. तो क्या था कि जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम, मतलब लड़ाई झगड़े तो घर घर में होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स के भी होते थे. तो उसमें क्या होता था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लड़ाई झगड़े का, कि लड़ाई झगड़ा हुआ, मम्मी अपने कोप भवन में, पापा अपने कोप भवन में, बच्चा कबूतर. ठीक है. और फिर मम्मी ने दाल बनाई, ले दे जाके, और वो भी आया गुस्से में, लो खा लो. आप सोच रहे हो यार इससे क्या पंगा मेरा. और फिर 8-9 दिन टाइम वेस्ट करके दोनों हस्बैंड वाइफ फिर शॉपिंग पे निकल गए, और फिर अगले झगड़े तक फिर नॉर्मल. अभी ऐसा नहीं होता है, अभी बहुत डेंजरस है. अभी एक झगड़ा हुआ हस्बैंड वाइफ में, वो लड़की ने उठा के लिया सैंडल और दे दनादन पिटाई, और उसकी इंस्टाग्राम रील बना दी, 1.1 मिलियन व्यूज. और क्या गजब कमेंट्स, क्या पिटा, झांसी की रानी, मजा आ गया, मतलब ये सब कमेंट्स. तो अब वो पिट गया, दुखी हो गया, तो वो कोप भवन में नहीं गया, वो टिंडर पे गया. अब टिंडर एक डेटिंग ऐप है जहां पे आपको बहुत दुखियारे मिलेंगे, तो टोटल दुखियों की संसार है वो. अब चूंकि ये दुखी था, ये टिंडर पे गया, इसने अपनी प्रोफाइल बना ली. वहां पे इसको एक दुखियारन मिली जो अपने पति से पिटी थी.
तो ये भी दुखी, वो भी दुखी, दुखी प्लस दुखी इक्वल टू, वाह गजब, बहुत बढ़िया। मुझे इस ऑडियंस से पूरी उम्मीद थी कि वो सही आंसर देगी, क्योंकि मैंने भी रेलवे का नमक खाया। लॉटरी फ्रॉड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक दिन मेरे पास फोन आया, बधाई हो भाई साहब करोड़पति बनने की। मैंने कहा थैंक यू। बोले साहब 1 करोड़ की हिमाचल प्रदेश की लॉटरी आपको लग गई है। मैंने कहा यार चलो अच्छा है यार, ऐसे तो जोड़ते जोड़ते तो टाइम लग जाता, थैंक यू। बोले साहब वो 10,000 रुपए का एक प्रोसेसिंग फीस है। मैंने कहा काट के दे दे। तो फोन ही काट दिया। सो दीज आर सम स्कैम्स। अब एक नया है डिजिटल अरेस्ट, है ना। अभी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर 11.5 लाख रुपीस चले गए। और ये क्या है, तुरंत स्काइप डाउनलोड कराएंगे और व्हाट्सएप से स्टार्ट होता है, टेलीग्राम से स्टार्ट होता है। ये पंजाब के डीजीपी 2 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट। अब बताओ पुलिस वाला ही अरेस्ट हो गया। ये रेलवे के एक सीनियर डीईएन है सदर्न रेलवे में। इनके पास फोन आता है कि आप 38 करोड़ के लोन फ्रॉड में फंस गए हैं। और ये एकदम घबरा जाते हैं और स्कैमस्टर्स इनको बोलते हैं कि भैया ऐसा घर में मत रुको, तुरंत एक बाहर जाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नी डिस्टर्ब करेगी, सब लोग डिस्टर्ब करेंगे। तो ये एक लॉज किराए पे लेते हैं। ही गोज इनटू द लॉज इन टाइनमपेट एंड वहां पर ही स्टार्ट्स निगोशिएटिंग विद देम। ये लोग बोलते हैं ऐसा करो, आप सारा पैसा लेके आरबीआई के सेफ अकाउंट में रख दो, अभी जब ये केस कंक्लूड हो जाएगा तब हम तुमको छोड़ देंगे। अब ये सारा पैसा इधर उधर से 5 करोड़ रुपए जुटाते हैं, 5 करोड़ रुपया रख देते हैं। अब इनकी वाइफ को शक होता है ये कहां चले गए, तो बार बार फोन कर रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो वाइफ पुलिस में जाती और कहती है कि ये फोन नहीं उठा रहे। तो पुलिस इनको फोन करती है, उनका भी नहीं उठाते हैं। और वो हैकर्स इनको ये बोलते हैं वी आर द रियल पुलिस, दीज आर ऑल नकली पुलिस, सो डोंट बिलीव देम। तो ये जो है बिल्कुल एकदम वो स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाता है इनको। और स्टॉकहोम सिंड्रोम में ये जस्ट इज ट्रैप्ड। अब जब पुलिस पहुंचती है लॉज में लोकेशन ट्रैक करके, तो इन पे चिल्लाते हैं ए नकली पुलिस, बब चल भी लोग नहीं चाहिए। वो पुलिस वाला उसको झकझोरता है, यू आर ट्रैप्ड। तब भी नहीं समझ में आता, 5 करोड़ रुपीस इनके निकल गए, सारी जिंदगी की कमाई सब खत्म। ये एक और रेलवे के ऑफिसर हैं, 9 लाख ऑनलाइन, 20 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट। ये हैं जिनके कपड़े हम पहनते हैं, ओसवाल, इनके 7 करोड़ रुपीस ले गया कि सुप्रीम कोर्ट का वारंट। ये स्लाइड मैंने कल अपडेट करी। दिस इज एआई से बनाया मैंने, रिप्रेजेंटेटिव इमेज। बट दिस 86 ईयर वेरी रिच वुमेन इन मुंबई, ये कल मैंने स्लाइड अपडेट करी। सो डिजिटल अरेस्ट किया और 4 महीने तक डिजिटल अरेस्ट किया, 4 months, एंड 20 करोड़ ले लिए, इसका कर दिया। हालत इतनी खराब हो गई कि प्राइम मिनिस्टर को जंप इन करना पड़ा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटक सर, वो मैं घर में हूँ सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। आइएगा। कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति को 1 साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। आपकी व्यक्तिगत जानकारी वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर, बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। कभी भी
आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। साथियों, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि डिजिटल अरेस्ट। अब आप देखो, मैं आपको कह रहा था कि क्यों यूपीआई आप सेपरेट अकाउंट पे रखो, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे फंस गए। तो ये देखिए कैसे मतलब फंस गया ये बंदा। हेलो सर, इज दिस मिस्टर त्रिलोक? हाँ बोल रहा हूँ। क्या आपके बेटे का नाम राहुल है? हाँ तुम क्या हुआ? सर, मैं ब्लेस्केयर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। राहुल को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। एक्सीडेंट केस है। क्या? रोड एक्सीडेंट सर, डॉक्टर्स देख रहे हैं क्रिटिकल है, इसीलिए उनको सीधा ओटी में ले गए हैं। अरे लेकिन कहाँ है वो? सर, ब्लेस्केयर हॉस्पिटल, पर उनका ट्रीटमेंट अभी शुरू करना पड़ेगा सर। अरे तो आप शुरू कीजिए ना प्लीज, मैं आ तो रहा हूँ। देर हो जाएगी सर, 15 मिनट में ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना रिस्क बढ़ जाएगा। मैंने रिक्वेस्ट करके ओटी ब्लॉक किया है दूसरे भी केसेस है। आपको पेमेंट लिंक भेज दिया है, बस वो लिंक पर क्लिक करके 30,000 अभी डिपॉजिट कर दो और फिर आप जल्दी आ जाओ। मेरा नाम अमित है और मैं आपको फ्रंट डेस्क पर ही मिलूंगा। हाँ कर दिया मैंने पेमेंट, बस मैं निकल रहा हूँ। सर सब ठीक है ना? हाँ। The number you are trying to call is currently not reachable. राहुल बेटा। हाँ पापा। पापा क्या हुआ? अभी देखिए एक और फ्रॉड। तो झारखंड के जामताड़ा ग्रुप के तर्ज पर काम करते हुए पूर्णिया के अमौर और कस्बा से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दरमियान जो जानकारी सामने आई है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि यह ग्रुप बगैर किसी ओटीपी के और अकाउंट होल्डर से किसी भी तरह की जानकारी शेयर किए बगैर उनके अकाउंट से रुपये उड़ा रहा था। पूर्णिया एसपी ने बताया कि इसके लिए ग्रुप के लोगों को अलग अलग कामों पर लगाया गया था। कुछ लोग रजिस्ट्री ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते थे और फिर उसका फिंगरप्रिंट का कॉपी कर डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट बनाकर आधार कार्ड के नंबर के साथ अकाउंट से रुपये उड़ाया करता था। पूर्णिया एसपी आमिर जावेद ने कहा कि साइबर क्राइम का यह बिल्कुल नया मामला है, इससे लोग कैसे बच सकते हैं इसके लिए वे जानकारी जुटा रहे हैं। कि आंध्रा के साइट पर जाकर के उसने ये लैंड रिकॉर्ड्स निकाला। उस लैंड रिकॉर्ड्स में जो डिटेल्स था उसका आधार का और ये फिंगरप्रिंट्स का, उसको इसने ब्रीच किया और ब्रीच करने के बाद ये उसने बनाया नकली थंब इम्प्रेशन और उसके बाद आधार और थंब इम्प्रेशन को ब्रीच करके पैसा निकाला। बैंक में अगर आपका ओटीपी कभी आप वेट नहीं करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बायोमेट्रिक्स ब्रीच कर करके ये पैसा निकाल लेगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। अगर आपका बायोमेट्रिक मिल गया किसी को और अगर आधार नंबर मिल गया तो डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन है, आपको ओटीपी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये एईपीएस फ्रॉड है। तो आपको क्या करना है, आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं जिनको ऑनलाइन बैंकिंग आती है तो वो अपना ऑनलाइन बैंक में जाएं, वहां पे एईपीएस को डिसेबल कर दीजिए तो आप सेफ रहेंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल बैंक को फोन करिए, बोलिए कि साहब ये एईपीएस मेरे अकाउंट पे डिसेबल करना है, मुझे इसको करवा लीजिए डिसेबल, नहीं तो किसी भी दिन आपके बैंक अकाउंट से पैसा चला जाएगा, आप बोलोगे कि यार ये कैसे हुआ। अब देखिए, अब सीन और डेडली है। ठीक है, ये जो सुंदर सा आदमी है, मेरी तरह का सुंदर है ये। अगर आपने ये लेफ्ट वाली चीजें नहीं ध्यान से सुनी तो आप ये राइट जैसे हो जाओगे, इसलिए मैंने ये बनाया है। डीप फेक, आपको आइडिया है क्या है ना डीप फेक? डीप फेक में आवाज भी आपका है, वीडियो भी आपका है, लेकिन आप नहीं हो। यह है मजा डीप फेक का।
और डार्क नेट पे बहुत अच्छे अच्छे टूल्स आते हैं जो कि बहुत कम वॉइस सैंपल से, वीडियो सैंपल से डीप फेक बना देते हैं। एंड दिस इज नाउ बिकम सो रैम्पेंट, और ये आपके साथ भी कभी भी होने वाला है। ये कुछ केसेस हैं। एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनका फेसबुक वीडियो कॉल अपने बैचमेट्स को जाने लग गया और कई बैचमेट से इन्होंने पैसे ले लिए, जबकि ये बैचमेट थी नहीं। इनका डीप फेक ही जो है सबसे पैसे मांग रहा था। किसी ने $25 मिलियन ट्रांसफर कर दिए जब फाइनेंस ऑफिसर का फोन आ गया, वीडियो कॉल आ गया। तो ये रियल में हो चुका है। ये एक बडिंग पॉलिटिशियन है यूएस की, इनका एक डीप फेक पोर्नोग्राफिक बन गई और इनका पूरा पॉलिटिकल करियर खराब कर दिया। डीप फेक इतने रियल बन गए हैं कि अभी आप पहचान नहीं सकते कि ओरिजिनल कौन सा है और डीप फेक कौन सा है। इतना रियल हो गया ये सब। Malaysia is facing escalating AI-driven fraud attempts driven by the surge in deepfakes. The number and quality of deepfakes is increasing. How is your flight? Are you coming home? Mom, I lost my wallets and bank cards. I made a police report, so I missed my flight. 为什么会这样 ？Are you okay? Girl, is your passport with you? Yes, I still got my passport, but I can't come back home because I don't have money. Pa, can you transfer me some money? Don't worry, 爸爸转给你。 But how to transfer you the money? Don't worry, Ma. I'm with my coursemate. You can just transfer to her account. OK， 爸爸转500给你。Pa, 500 哪里够 ？Give me 5,000. I'll pay back you later. 转啊转啊！ Fine, just send me the account number. Thanks, Pa. You're the best. 爱你深深。快点转给他，哎。爸妈， I'm home。爸，钱转了没 ？I wanna go home. Is that my voice? तो दिस इज गोइंग टू बी रियल। अब आप सोचो इसके इम्प्लीकेशंस कितने डेंजरस हैं। अब आपको बॉस बहुत पसंद करते हैं और आपके कलीग को ये अच्छा नहीं लगता कि आप अपने बॉस के बहुत नजदीक हो, तो वो कलीग क्या करेगा? अरे कुछ एक डीप फेक बनाएगा आपका और बॉस को ले जाएगा कि सर देखिए कल रात की पार्टी में ये आपके बारे में क्या बोल रहा है। अब बॉस ने आपसे नजरें फेर ली। अब आप सोच रहे हो यार मैं इतना जान दे रहा हूं इस आदमी के लिए, ये बिल्कुल यार ये गलत फहमियां है। अब पड़ोसी में झगड़ा कराना है, कितना सिंपल है। एक उसकी फैमिली का डीप फेक बनाओ, दूसरे को सर्कुलेट कर दो। द टूल्स आर सो गुड। तो इसलिए ये अब आपके घर घर में आने वाला है। इसलिए आप तो एक पार्टिसिपेंट ने एक वर्कशॉप में मुझसे पूछा कि सर अगर, तो मैं ऐसे सबको बता रहा था कि देखो यार अपने घर वालों को अवेयर करके रखो कि कुछ ऐसा वैसा वीडियो आ जाए तो मतलब पहले तो ये सोचना ये डीप फेक है, नहीं तो घर में झगड़ा हो जाएगा। तो एक पार्टिसिपेंट उठा बोला कि सर अगर मैं सही में ऐसा कर दूं और वाइफ को बोलूं कि अरे ये तो डीप फेक है। मैं बोला भाई साहब अगर आपके संस्कार ही खत्म है तो इसमें कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती। फिर तो आप आराम से कर लीजिए। तो ये डीप फेक जो है ना, दैट हैज बिकम वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। अब डीप फेक से बचने के लिए आपको क्या करना है? देखो क्या है कि जब भी पैसा ट्रांसफर करना है आपको किसी को, और कोई वीडियो कॉल आपके बच्चे का आ रहा है किसी अनजान नंबर से, और वॉइस कॉल आ रहा है कि अरे यार पापा पैसे देना, मेरे को इमीडिएटली 5,000, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा कुछ हो गया। एक फैमिली कोड रख लो आप लोग कि ठीक है पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली कोड बताओ। वहां पे एआई फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा, क्योंकि एआई को मालूम ही नहीं फैमिली कोड क्या है। तो जैसे मेरा फैमिली कोड है XYZ, असली थोड़ी बताऊंगा। तो सब लोग एकदम से खुश हो गए, पता चलेगा अभी डीप फेक कर। तो जैसे ही कोई, जैसे मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, अगर वो फोन करता है मेरे को कि पापा पैसे देना 500 रुपीज, फैमिली कोड XYZ, तो मैं तुरंत उसको पैसे देता हूं। तो आप एक फैमिली कोड रख लो। एक सिंपल साइबर हाइजीन टिप से आप पूरी एआई को आप पीछे छोड़ सकते हो। ये जो वॉइस क्लोनिंग है ना, ये मर्फ, रिजेंबल, स्पीचिफाई, ओनली 3 seconds ऑफ वॉइस सैंपल इज इनफ
टू एक्चुअली क्रिएट अ डीप फेक, ओनली 3 सेकेंड्स। लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बनता, आपको थोड़ा ज्यादा वॉइस सैंपल देना होता है उसके लिए। ये वॉजिक एआई इज एन इंडियन कंपनी। अब जैसे आप लोग जैसे यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, है ना, कोई वर्कशॉप हो रही है साइबर टाइप की, बोरिंग वर्कशॉप। अब जीएम साहब अभी आज अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए और एजीएम सर यहाँ बैठे हैं। अब एजीएम सर सोचें कि मैं देखूं कि कौन सोया था, तो अब सीसीटीवी फुटेज पूरा तो 3 घंटे का, सर बोलेंगे यार पहले तो 3 घंटे वहां झेला मैं, अभी फिर से देखूं सारा, सिर्फ पकड़ने के लिए कि कौन सोया। ये वॉजिक एआई में क्या होता है, आप वो सीसीटीवी फुटेज पूरा उसको दे दो, 20 आवर्स, 30 आवर्स, 40 आवर्स, और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखो, हाउ मेनी पीपल वर फाउंड स्लीपिंग, प्लीज लोकेट द पीपल एंड टेल मी। बस वो आपको जितना सोता सोता लोग हैं सब ऐसे लाके निकाल के दे देंगे। अब देखो मैंने आइडिया दे दिया, सब पीएचडी लोग बैठे हैं, मतलब दे नाउ नो कि हाउ टू डू। ठीक है, तो ये वॉजिक एआई वो कंपनी है। अब आ गया ग्रॉक 3 एंड डीप सीक, है ना। चैट जीपीटी आपने सुना होगा, जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर्स। ये बेसिकली डेटा सेट्स पे इनको ट्रेन किया जाता है। अब चैट जीपीटी पुराना हो गया, चाइना ने लॉन्च कर दिया डीप सीक। डीप सीक क्या है कि पूरा सोचता है कि एग्जैक्टली वो क्या सोच के आंसर दे रहा है, वो डीप सीक है। चैट जीपीटी कैसे सोच रहा है वो आपको नहीं बताएगा। दूसरा, चैट जीपीटी बहुत हेलुसिनेट करता है। अगर आप उसको आंसर कोई क्वेश्चन पूछो, उसको नहीं आता है, तो वो कुछ इमेजिन करके हेलुसिनेट करके आपको बता देगा और परफेक्टली झूठ बोलेगा। डीप सीक बोल देगा मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा, तो हेलुसिनेट नहीं करता, तो फैक्चुअली करेक्ट है। चाइना के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। फरवरी 2025 में पिछले मंथ इलॉन मस्क लॉन्चेस ग्रॉक 3, और लास्ट 2 दिन में, कल और परसों, पूरे देश में हंगामा चल रहा है, आपको मालूम नहीं होगा। ग्रॉक 3 इतना डेंजरस है, ये ट्विटर जो है, एक्स जो अब हो गया है, ये एक्स के साथ लिंक्ड है ग्रॉक 3। आप इससे जो भी क्वेश्चन पूछो, इसको पूरे वर्ल्ड का पूरा डेटाबेस रियल टाइम में मालूम है। रियल टाइम में पूरे वर्ल्ड में जो भी नॉलेज क्रिएट हुआ है वो ग्रॉक के पास है। मैं कल रात में गेस्ट हाउस में ग्रॉक को यूज कर रहा था, माइंड बॉगलिंग है, माइंड बॉगलिंग। तो ये वो इनोवेशंस है जो हमें पता होने चाहिए कि वर्ल्ड कहां जा रहा है। अब ये साइड आई क्या है, देखो, ये मैं आपको 25 इयर्स के लिए रेडी कर रहा हूं कि क्या होने जा रहा है वर्ल्ड में। जब आप फोटो खींचते हो तो कई तो फोटो एकदम ऐसे स्टिल आते हैं, कई फोटो ऐसे आते हैं जिसको लाइव फोटो बोलते हैं, है ना, लाइव फोटो होते हैं, तो उसमें हल्का सा मूवमेंट होता है। ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये क्या होती है, ये पॉइंट ऑफ व्यू वेरिएशन टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि जब आप फोटो खींचते हैं, जैसे मेरा फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे लोग, जैसी फोटो खींच रहा है उसमें जो मेरी आवाज आ रही है या इधर लोग ऑडियंस जो आपस में बात कर रहे हैं, इससे वाइब्रेशन हो रहा है लेंस में। लेंस एक जेल के अंदर है, वो इतना माइन्यूट वाइब्रेशन है कि उसको एआई सिस्टम समझता है, नेकेड आई से नहीं देख सकते आप। वो जो वाइब्रेशन है, ये साइड आई एक कंपनी बनाई। इस कंपनी ने क्या किया, फोटोग्राफ्स लिए और 85% एक्यूरेसी से ये साउंड निकाल दिया कि वहां फोटो खींचते समय क्या बातचीत हो रही थी। इसको कहते हैं अकूस्टिक ईव्सड्रॉपिंग। मतलब आप फोटोज देख देख के ये पता कर सकते हो कि वहां बातें क्या हो रही थी। इतना डेंजरस हो गया अभी टेक्नोलॉजी। अब एक और नया इंटरेस्टिंग चीज आ गया कि आप 2 घंटे में एआई आपकी पूरी पर्सनैलिटी बना देगा। तो मुझे ये रिसर्च पेपर मिला, ये गूगल डीप माइंड, ये MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू में पब्लिश हुआ था नवंबर में लास्ट ईयर। इसमें क्या किया, गूगल डीप माइंड की टीम ने एक बंदे को बिठाया और एआई से बात करवाई 2 घंटे। एआई ने उसको कंप्लीटली 85% एक्यूरेसी से उसकी पर्सनालिटी उसकी बॉडी से अलग कर दी। अब तो डेंजरस है। आपकी पर्सनालिटी यूज करके कोई बैंक डकैती कर सकता है, आपकी पर्सनालिटी यूज करके कहीं कोई मर्डर करके भाग सकता है, फंस जाओगे आप। एंड दिस इज वेरी डेंजरस। तो वर्ल्ड को भी क्या क्या देखना है पता नहीं, बट ये टेक्नोलॉजी इज नाउ रियल। इसके ऊपर रिसर्च पेपर है।
अब मामला बहुत गड़बड़ है जी। देखिए 80% लोग अभी भी फिशिंग ईमेल्स खोल रहे हैं और कितना इंक्रीज हो गया देखिए साइबर क्राइम। थोड़ा सा मैं रशिंग करता हूं। अब देखिए ये क्या है, ये एआई का फ्यूचर आपको बता रहा हूं। ओसाका यूनिवर्सिटी जापान में एक रिसर्च हुआ। वो क्या किया कि जैसे आप लोग बैठे हैं, आपके ब्रेन्स को मैं एक एआई सिस्टम में वाईफाई के थ्रू प्लग इन करता हूं, या जैसे भी ये लोग करते हैं कर दिया। उसके बाद मैं आपको जानवर दिखाता हूं। आई शो यू एलिफेंट। एलिफेंट सबने देखा, तो हर एक ब्रेन में एक एक्टिविटी हुई एलिफेंट देख के, वो एक्टिविटी एआई सिस्टम ने कैप्चर करी। फिर लॉयन दिखाया तो थोड़ी डिफरेंट एक्टिविटी हुई, फिर टाइगर दिखाया, चीता दिखाया, अलग अलग बहुत सारे एनिमल्स दिखाए और उसको एआई सिस्टम को ट्रेन कर दिया। उसके बाद एक व्यक्ति को पूछा कि थिंक अबाउट एन एनिमल। उस व्यक्ति ने ये एनिमल सोचा और एआई ने बोला वो ये सोच रहा है। ये रियल है, मतलब एआई अब सोच भी पकड़ रहा है। एआई इज नाउ एबल टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग। अब दिस इज और द मोर डेंजरस। ये तो बहुत खतरनाक है क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते। अब आप बॉस के कमरे में जा रहे हो, इससे अच्छा आदमी तो पैदा ही नहीं हुआ। आई एम सो लकी, गॉट द बेस्ट बॉस। और जैसे ही घुसे, सर मे आई कम इन, बॉस ने तुरंत दराज खोली, एआई मशीन पे देखा, ओह आई गॉट द बेस्ट बॉस। हाँ हाँ बेटा बोलो क्या लाए हो। और जैसे अभी जा रहे हो आप सोच के, वैसे मत जाना, अरे यार बड़ा खराब समय बीतने वाला है यार, अंदर घुसे ना, वो बॉस पकड़ लेगा। ऐसे ही आप घर में जाओगे, एनिवर्सरी भूल गए पत्नी के लिए, मैं कल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा इसलिए तुम्हें विश करना भूल गया। वाइफ ने दिया एक तमाचा, ये सोच रहे हो तुम, सब पता है मुझे। ये हो जाएगा और ये घर घर में हो जाएगा, एंड दिस विल बी इट्स वेरी सीरियस। और बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। लेट्स सेव द चिल्ड्रन फर्स्ट। देखो व्हाट्सएप पे लोगों ने अपने बच्चों की डीपी लगा रखी है, प्लीज रिमूव दैट, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनती है एंड यू विल बी एम्बेरेस्ड वन डे। बच्चों की डीपी शुड नॉट बी योर डीपी। दूसरा क्या है, हम शेरेंटिंग करते हैं। व्हाट इज शेरेंटिंग? देखो मेरी 5 ईयर की डॉल कितनी बढ़िया बर्थडे में, देखो कितना बढ़िया डांस कर रही है, और बच्चे के एक्सपेंस पे हम लोगों लाइक्स ले रहे हैं। तो प्लीज डोंट यूज योर किड्स एज प्रोडक्ट्स फॉर योर सोशल मीडिया क्रेज, एंड आई अर्ज यू टू प्लीज डोंट अलाउ योर किड्स टू प्ले ऑनलाइन गेम्स, बिकॉज वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं बच्चे ये गेमिंग कॉइन्स के लिए कि हैकर उनसे कैमरा ऑन करवा लेता है, क्रेडिट कार्ड शेयर करवा लेता है, सब कुछ करवा लेता है। Mark my words, AI is far more dangerous. Hey Mom, hey Dad, it's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब देखो छोटे छोटे साइबर टिप्स हैं। जब भी आप उठोगे अपनी सीट से तो विंडोज और L की को दबा के उठोगे, तो कंप्यूटर लॉक करके उठना है हमेशा, नंबर 1। दूसरा, पासवर्ड को बोल बोल के टाइप नहीं करना है, कैपिटल A 6 ऐसे बहुत लोग बोल बोल के पासवर्ड टाइप करते हैं, अजीब आदत है।
क्योंकि आपका माइक्रोफोन हमेशा ऑन मोड में रहता है, तो डोंट डू दैट। वॉइस सैंपल नहीं देना है। हर वीक में एक संडे को आप रख लो, वीक में एक दिन स्विच ऑफ योर फोन एंड देन स्विच इट ऑन। दिस विल सेव यू फ्रॉम लॉट ऑफ हैसल्स। फोन को बस स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो, इससे बहुत फायदा होगा। वेब कैमरा कवर लगाओ, जैसे मेरे मैक पे भी लगा हुआ है, वो 150 रुपीज में 6 कैमरा स्लिप्स आ जाते हैं। ये हम लोग इसको बाद में करेंगे क्योंकि टाइम कम है। एंड OTP, वाईफाई, ये सब बता दिया मैंने। थर्ड पार्टी सर्वे फॉर्म्स नहीं भरने चाहिए। और मॉडेम की सिक्योरिटी रखो। आप एडमिन पासवर्ड मॉडेम का चेंज करो, खाली वाईफाई पासवर्ड रखने से नहीं होता है। एडमिन पासवर्ड डिफॉल्ट ही बना रहता है। सो 3 वाइज मंकीज ऑफ डिजिटल एज। लेकिन देखो क्या है, एक जॉन एलिया करके एक पोएट है, उसका एक बड़ा फेमस लाइन है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सभी को एक हादसा जरूरी है। कि मतलब द डे इट हैपन्स टू यू देन ओनली यू लर्न। सो लेट्स डू सम हैंड्स ऑन विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड बिकम। अब आप साइबर ब्लैक बेल्ट बन गए हो। पहले एक बार अपने लिए ताली बजा दो। अब मैं आपको ना थोड़ा कमांडो की तरफ ले जा रहा हूं, एक स्टेप आगे। साइबर ब्लैक बेल्ट और कमांडो में ये फर्क है कि कमांडो और ज्यादा थोड़ा सा वो हो जाता है। तो एक दो हैंड्स ऑन हम करेंगे। व्हाट्सएप, देखो ये तो थोड़ा इंग्लिश है, बट आई टेल यू 3 थिंग्स दैट यू शुड डू ऑन योर व्हाट्सएप। नंबर 1 इज ऑलवेज हैव अ सिक्योरिटी पिन ऑन द व्हाट्सएप, बिकॉज इफ योर एंड्रॉइड फोन गेट्स हैक्ड, एटलीस्ट आपका व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर पाएगा। नंबर 1। दूसरा ये है कि ऑटो मीडिया डाउनलोड फीचर शुड बी ऑफ। तीसरा ये है कि बैकअप, डोंट टेक बैकअप्स, बिकॉज क्या है कि बैकअप विल ईट योर फोन्स मेमोरी एंड इट विल मेक योर फोन वेरी स्लो। इंस्टेड हैव अ हैबिट ऑफ मार्किंग द मैसेज एज स्टार। मैसेज को स्टार करना सीखो। आप कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको स्टार कर लो, लेकिन बैकअप मत लो, क्योंकि बैकअप एक तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है बाय डिफॉल्ट। एक ये वेबसाइट है haveibeenpawned.com। आप अपने ब्राउजर में जाना, इसमें टाइप करना और अपना वो वाला ईमेल डालना इसमें जो बैंक में दिया हुआ है। जब भी ऑडियंस को मैं ये बोलता हूं, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस रिपोर्ट कि हमारा ईमेल ब्रीच हो चुका है। दिस वेबसाइट इज सेफ, एब्सोल्युटली सेफ। यू जस्ट हैव टू इंसर्ट योर ईमेल एंड चेक वेदर this is pawned or not, and if it is pawned, whether there are pastes or not। अगर कोई यहां बैठ के कर रहा है तो मुझे बता सकता है कि कितने ईमेल में pawned हो और कितने ईमेल पेस्टेड हैं। लोगों के 5-5, 10-10 ईमेल्स जो हैं pawned और पेस्टेड आते हैं। कीप अस, यू कैन थिंक ऑफ दिस लाइन, क्योंकि AI की जो दुनिया है ना, यू विल नॉट बी एबल टू फाइट इट अनलेस यू यूज दीज स्मॉल टेक्निक्स दैट आई एम टेलिंग यू। देयर इज नथिंग टेक्निकल अबाउट इट। So have a separate email for banks and if possible a separate mobile number. These are 5 signs कि आपका फोन हैक हो चुका है। आपका फोन गर्म होगा, बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी जाएगी, हाई डेटा यूसेज, उसमें उल्टी सीधी एप्स आपको दिखेंगी। और अगर ऐसा हो गया है तो उसको आप क्लीन करो, एप्स डिलीट करो, उसका इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप लेके उसको रीसेट करो। पूरे का बैकअप लेके मत करना, नहीं तो मालवेयर का भी बैकअप हो जाएगा। ओनली इंपॉर्टेंट फाइल्स। ये वो बाथरूम है जहां पे आपको अपने डिवाइसेस को नहलाना है। साइबर स्वच्छता केंद्र csk.gov.in, जिसे गवर्नमेंट का है। एंड यहां पे आपको जाना है, यहां पर बॉट रिमूवल टूल्स मिलेंगे आपको। ऑन वन संडे जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन दिस वेबसाइट। वहां पे बॉट रिमूवल टूल अपने मोबाइल पे चलाइए और लैपटॉप पे चलाइए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना डेंजरस आपने, मतलब आपके मोबाइल में क्या क्या हो रहा था। जब आप पहली बार करोगे तो यू विल रियली बी सरप्राइज्ड कि कितना गंदा था आपका मोबाइल। कोई वुमेन अगर हैरेस हो रही हैं तो उनके लिए शी बॉक्स है। और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स, नो योर मोबाइल बिफोर बाइंग। संचार साथी प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उस संचार साथी प्लेटफॉर्म पे आपको अगर कोई मोबाइल बेच रहा है
आप उसका IMEI पहले इस पे डालो प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है आपको पता लग जाए तो चोरी का मोबाइल बेच रहा है, तो आप सेफ रहोगे। अगर आपका मोबाइल खो गया तो इमीडिएटली संचार साथी प्लेटफॉर्म पे पुट योर IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, which you can know by dialing *#06# on your dial pad. वो नंबर को कहीं सेफ रखो आप, इट इज ऑल्सो ऑन द मोबाइल बॉक्स। इस IMEI नंबर से आप इसमें रजिस्ट्री में डाल के रख दो, आपको 2 साल बाद भी कोई आपके मोबाइल में सिम डालेगा ना, पुलिस को पता लग जाएगा और पुलिस आपको फोन कर देगी और बोलेगी कि आपका मोबाइल रिकवर हो गया, आप ले लो। 2-2, 3-3 साल बाद भी मोबाइल मिले, एंड 17.25 lakhs मोबाइल वर ट्रेस्ड एज ऑन 9th March. So this is a very good resource, please use it. अगर साइबर अटैक हो गया, so there are only 2 ways as of now. One is helpline number 1930 and other is cybercrime.gov.in. Now this 1930 will take hours and hours. It is very busy. ये नहीं लगेगा आपसे, तो किसी फैमिली मेंबर को बिठाना है, 1930 पे लगा देना है उसको, एंड आपको बैठ जाना है cybercrime.gov.in पे, और बस उसके ऊपर सारा 20 मिनट्स लगेगा। यू पंच इन ऑल द डिटेल्स एंड देन इट विल इमीडिएटली गो टू द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वहां से बैंक में चला जाएगा, एंड विद इन 4 आवर्स अगर आपने किया है, गोल्डन आवर्स, तो इट इज हाईली प्रोबेबल दैट आपका मनी को वो लोग ब्लॉक कर देंगे और आपको रिटर्न कर देंगे। बट अगर आपने ये सोचा कि मेरे मामा तो पुलिस में हैं, हमारा पैसा कौन ले लेगा, फिर आप मामा को फोन करोगे तो मामा बोलेंगे अबे मेरा भी लेके चला गया। तो इसमें कोई मामा चाचा कोई काम नहीं आएगा, केवल यही 2 वेज हैं, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। ये बेंगलोर में somebody tried whole day and they could not get this 1930. क्यों? क्योंकि the calls are huge, 60 to 70,000 calls per day. Success rate is only 0.72%. But it is the last resort. You have to keep this in mind because Madras High Court has now given a ruling. पहले क्या होता था, किसी सस्पेक्ट का बैंक अकाउंट पूरा फ्रीज कर लेती थी पुलिस, अब नहीं कर सकती। अब जो भी साइबर क्राइम रिपोर्टेड है, केवल उतना अमाउंट ही उस अकाउंट में फ्रीज होगा, बाकी अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। तो अगर आपने रिपोर्ट किया हुआ है कि मेरा 1.5 लाख है, तो आपको मिल सकता है। अगर आपने रिपोर्ट ही नहीं किया तो फिर वो 5 लाख वाला अकाउंट जो मैंने शुरू में बताया था, दैट इज द बिगेस्ट सेवियर। अगर आपका 2 लाख का लॉस हो गया, उस लॉस अकाउंट में बुक कर दो, क्योंकि साइबर क्लास में आपको ये भी पता है कि खून नहीं जलाना है ना। तो ये चीज है। सो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट, दीज आर माई कोऑर्डिनेट्स। एंड टाइम पे ही खत्म कर दिया सर। तो 2 आप चीजें ध्यान रखना, आप लोग साइबर ब्लैक बेल्ट्स हैं, कि यू शुड नॉट बी इनकरिंग लॉस ऑफ मोर देन 25,000 henceforth, and you should not die before the age of 100. Thank you. Sir, I have a question, sir. I would like to know अगर आपका टारगेट पूरा हुआ कि नहीं है, you can take वो n नहीं number. सर, how many slept? Yeah, again I am disappointed. एक भी नहीं सोया सर, everyone was paying attention. मेरे शुरू में कुछ लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, I was very excited. At the end of the day, even the law enforcing agencies, they are able to understand how the things are moving in all the directions. For this knowledge is not only with the criminals, it is with the law enforcing people also. So everybody knows what is happening. It is very easy to detect crime and even the political disturbances also. So you have done this in Shivening, ethical hacking kind of things. So basically we are leading towards that ethical cleansing, or you can say what. Yes sir, you are very right कि एकदम अब थोड़ा cleansing तो हो रहा है सर, एकदम बिल्कुल cleansing हो रहा है। Anish, I had one question.
हाँ सर. We use private emails on office laptops, office desktop. अगर हम जल्दी में केवल उसको डायरेक्ट बंद करते हैं विदाउट लॉगिंग ऑफ, कैन इट बी हैक्ड? कौन सा सर? Private emails, if we use in office computers, and if we just shut it down without logging off, without properly logging off. हाँ, तो सर क्या होता है कि बहुत सारे जो emails हैं जैसे Gmail वगैरह, एक there is a term called as cookies. आपने देखा होगा सर. So cookies are basically small programs that keep the session live. तो जब आप खोलते हैं सर तो आपका इनबॉक्स खुला मिल जाता है आपको. So some cookies are live. So cookies are live means that there is some handshaking going on between the server and your desktop. So definitely it is not safe. But every time you are logging off, logging in, logging off, so best is to keep a face ID or a PIN or something like that, so that immediately आप log in कर सकें उसमें से. वो कर सकते हैं. There is an option of sleep off. Sleep also sir. तो जनरली सर मैं क्या करता हूँ अपने डिवाइसेस को वीक में एक बार पूरा शट डाउन करके मतलब रीस्टार्ट करता हूँ. बाकी 7 days तक वो स्लीप मोड में ही रहते हैं सर. आई जस्ट मेक देम स्लीप. वैसा रहता है सर. VPN लगाएगा ना कोई? देखो क्या है, ये तो चूंकि IT के हैं इसलिए ये इस तरह की बात बोल रहे हैं कि हम नेटवर्क्स में ब्लॉक कर सकते हैं. देखो जो ताला होता है ना वो शरीफों के लिए होता है, चोरों के लिए नहीं होता है. तो ये जो VPN है, ये सब टोकन्स हैं, ये सब ना ये शरीफ लोगों के लिए है. बाकी साइबर वाले को क्या है, फायरवॉल जंप करेगा, इमीडिएटली एक्सेस करेगा, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है. द एंटायर वर्ल्ड इज ओपन फॉर हिम. यू कैन नॉट पुट बैरियर्स इन दिस वर्ल्ड. देयरफॉर साइबर हाइजीन इज इंपॉर्टेंट. आप ये सब करते रहो, कुछ भी इधर ब्लॉक कर दो, उधर ब्लॉक कर दो, सब कुछ एक्सेस हो जाता है. एवरीथिंग इज एक्सेसिबल. सर वन क्वेश्चन सर. हियर सर आजकल इतना सारे पासवर्ड्स हो गया फॉर डिफरेंट वेबसाइट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. कुड यू प्लीज टेल अस एक्चुअली आई मिस्ड वन स्लाइड बिकॉज मुझे लगा कि टाइम जल्दी हो रहा है. देयर इज अ स्लाइड, आई विल टेक यू टू दैट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आई स्किप्ड एक्चुअली, बट दिस इज, थैंक यू सो मच फॉर दिस. वो क्या स्किप में डेलिबरेटली नहीं हुआ वो. सी देखिए, पासवर्ड मैनेजमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम एंड एवरी 60 days 90 days आपका पासवर्ड चेंज करवाता है. अब ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन बीइंग कहता है कि नहीं मैं किसी पे ट्रस्ट तो कर नहीं सकता, तो वो रखता है अपना पासवर्ड रमेश 123 SBI बैंक में. तो लिख देता है रमेश 123 @SBI. फिर सोचता है कि अब मैं पासवर्ड कैसे याद रखूं, तो रमेश जीमेल पे करता है रमेश 123 @gmail, रमेश 123 @hotmail. क्योंकि ह्यूमन बीइंग सिर्फ इतना ही कैपेबल है, इससे ज्यादा नहीं है. एंड वर्ल्ड का मोस्ट कॉमन पासवर्ड इज पासवर्ड. पासवर्ड इज द मोस्ट कॉमन पासवर्ड. द सेकेंड मोस्ट कॉमन इज पासवर्ड 123. अब आप देखो, what I always request everybody, please don't try to remember passwords. It is humanly impossible, and all the tricks which the human being know, AI knows. तो AI ने क्या कर रखा है, ये सारे जो ह्यूमन बीइंग्स ट्रिक्स लगाते हैं, ये सारी ट्रिक्स AI जानता है, उसने डॉक्यूमेंट की हुई है. अब आप कोई टूल ले लो और आपको एक पासवर्ड का एक स्ट्रिंग दे दो, वो AI पूरा जनरेट करके आपको मल्टीपल वेबसाइट्स के पासवर्ड दे देगा. दिस इज वेरी डेंजरस. जिसको क्रेडेंशियल स्टफिंग बोलते हैं. इसलिए प्लीज यूज ओनली पासवर्ड मैनेजर्स, नोन पासवर्ड मैनेजर्स. अब वो ट्रेंड आ गया जब हमको ये करना चाहिए. सिंस 20 years आई यूज पासवर्ड मैनेजर. आई रिमेंबर ओनली वन पासवर्ड विच इज द पासवर्ड ऑफ माई पासवर्ड वॉल्ट. एक ही पासवर्ड मैं याद रखता हूं. अब सपोज मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरी मेमोरी चली जाए, तो उसका क्या होगा? तो फिर मैंने क्या किया हुआ है, बैंक लॉकर में उस पासवर्ड को लिख के डाला हुआ है. एंड माई वाइफ नोज, माई किड नोज. सो आई विल नॉट बी लॉक्ड आउट ऑफ माई डिजिटल लाइफ इवन इफ आई लूज माई मेमोरी. बट आई यूज ओनली पासवर्ड मैनेजर. सो प्लीज यूज पासवर्ड मैनेजर. और कोई तरीका नहीं इसका. अब मैं आपको बताऊं ये वाली चीज कि
7 कैरेक्टर पासवर्ड 2020 में 7 मिनट्स लगता था ब्रूट फोर्स से, अभी लगता है 4 सेकेंड्स। 8 कैरेक्टर पासवर्ड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। एंड ये शीट देखिए आप। सो इफ यू हैव ऑल नंबर, अपर केस, लोअर केस, लेटर, सिंबल, so 12 character password will take 226 years to brute force. Brute force मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। So anything less than 12 character password, you are sitting on a time bomb. So इसलिए please it is very important to use password manager. But ऐसा नहीं है कि किसी APK से password manager डाउनलोड कर लिया, वो मत करना। Only known password manager who have a standing. Otherwise अपना password ही आप हैकर को दे दो सारा, वो नहीं। So very good question, thank you so much. So password management pen and manager use करें। सर जैन सर, एक्चुअली हम लोग आरपीएफ से सर टॉट केसेस लगाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वर्चुअल नंबर्स से सर। सो जो भी एक्यूज होता है सॉफ्टवेयर सेलर से, तत्काल सॉफ्टवेयर सेलर से वर्चुअल नंबर से व्हाट्सएप में चैट किया जाता है। सो उसको ट्रेस करना, जल्दी ट्रेस करना हमको नहीं हो पा रहा है सर, उसका कोई टेक्निक है सर? बहुत मुश्किल है। अनलेस यू गेट दैट डिवाइस, उसका पूरा फॉरेंसिक्स करना पड़ेगा और उस फॉरेंसिक्स के थ्रू आपको पूरा नेटवर्क पता करना पड़ेगा। एंड समथिंग लाइक डब्बा कॉलिंग हैपेंस, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेस इट। इसीलिए वो डब्बा कॉलिंग बताया मैंने। यस सर। दूसरा सर, लैपटॉप जब चोरी होता है तो सो मैक नंबर से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैक स्पूफिंग का भी एक टेक्निक आ गया सर, अगर उसका भी अगर ट्रेस कर सकता है कि सर? हाँ, मैक स्पूफिंग तो इजीली ट्रेस हो जाती है, क्योंकि मैक स्पूफिंग क्या होता है, इट इज स्पूफ्ड बियॉन्ड द ओरिजिनल मैक नंबर। यस सर। सो व्हाट ही इज सेइंग इज नॉट दिस एप्पल मैक, ही इज टेलिंग द मशीन मैक नंबर। सो एवरी machine has a unique MAC number. It's not about Apple Mac. So this Macs are basically spoofed. जैसे IP spoofing होती है, इसी तरह MAC address भी spoof हो जाते हैं। But there are lots of tools, forensic tools, which will immediately go one layer back and get the original. Thanks. Yeah, thank you. Special thanks to AGM sir, DRM Hyderabad sir, all the PHODs for staying back to finish the lecture. Now I would like to invite our AGM sir and SDGM sir to felicitate our guest speaker who has been very kind, though he's been busy, to deliver such a phenomenal lecture. Thank you, sir. So just 1 minute, sir. Please. I invite Deputy CVO SNT to deliver vote of thanks. At the outset, I would like to thank the Chief Guest of the day, AGM South Central Railway, Shri Neeraj Agarwal sir, for sparing his valuable time and sharing his valuable experience, thought and his wisdom with us. I would like to thank the guest speaker, Shri Anish Prasad, IPS, ED Vigilance Police, for accepting our invitation and for sharing his expertise on the subject. I would like to thank our beloved SDGM sir for envisioning this unprecedented initiative and taking efforts for this success. I would also like to thank all PHODs, DRM Hyderabad, officers and staff for their active participation and making this program a grand success. I would like to thank entire CPRO team for their valuable contribution and SNT department for arranging live streaming of this event through YouTube as well as WebEx platform. I would like to thank DRM Hyderabad sir, entire Hyderabad division team, especially engineering, electrical and SLT departments for their valuable contribution towards organizing this event and making this a grand success.
Last but not least, I would like to thank all vigilance officers and the entire vigilance team, vigilance inspectors, ministerial staff and all supporting staff. I would also like to thank one and all who are present here for their active participation and making this lecture a memorable event. Thank you once again. Let us stand for the national anthem now. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, everyone.